দিনত আমাৰ প্ৰতিজন মানুহে বিনিময় কথা কৈছিলে। তাৰমানে আপোনাৰ ঘৰত যদি চাউল আছে, মোৰ ঘৰত কিবা বেলেগ বস্তু আছে, আমি সাল সলনি কৰিছিলোঁ, হয়নে? যে আপোনাৰ সময় পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে, যুগ বাগৰাৰ লগে লগে আমাৰ মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন হ'ল, আৰু মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন হোৱাৰ লগে লগে ঘৰৰ বস্তুবিলাকৰ চাহিদা কমি আহিল, কোম্পানীবিলাকে গা কৰি আহিল, গতিকে কম সময়ত বেছি বস্তু উৎপাদন কৰিব ধৰিলে, হয়নে? আৰু তেতিয়াৰ পৰা এখন বজাৰৰ সৃষ্টি হ'ল, সেইখনকে কি বুলি কয়? ট্ৰেডিশ্যনেল বিজনেছ। ট্ৰেডিশ্যনেল বিজনেছ, পৰম্পৰাগত ব্যৱসায়। আমি দেউতাৰ দিনৰ পৰা যিটো কৰি আছোঁ, আজু ককাৰ দিনৰ পৰা কৰি আছোঁ, যেতিয়াৰ পৰা মানে আজু ককা বুলি নহয়, যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ সভ্য হ'লোঁ, আমি যেতিয়া গছৰ বাকলি এৰি পিনে কাপোৰলৈ আহিলোঁ, চাফ চাবোন, বিস্কুট ভুজিয়া, আমি কেঁচা বস্তু কেঁচাকৈ নাখাই যেতিয়াৰ পৰা বনাই খাবলৈ শিকিলোঁ, তেতিয়াৰ পৰা আমি এখন বজাৰত থকা নাই জানো? গতিকে সেই বজাৰখনৰ নাম হ'ল কি? ট্ৰেডিশ্যনেল বিজনেছ। আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল বিজনেছত কি থাকে জানেনে? ইয়াত কাষ্টমাৰ থাকে, ইয়াত কোম্পানীয়ে বস্তুটো মেনুফেকচাৰিং কৰে, হয়নে বাৰু? কোম্পানীৰ কাম হ'ল বস্তুটো তেওঁলোকে মেনুফেকচাৰিং কৰা, আৰু কাষ্টমাৰৰ কাম হ'ল কি? বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰা, হয়নে নহয়? এতিয়া এই কোম্পানীয়ে ডাইৰেক্ট এই কাষ্টমাৰ ঘৰলৈ বস্তু বিকিবলৈ নাহে, আৰু কাষ্টমাৰজনেও কোম্পানীলৈ ডাইৰেক্ট বস্তু এটা কিনিব যাব নোৱাৰে, কাৰণ আমাক 1 কেজি 2 কেজি এপিচ 2 পিচ এনেকুৱা ধৰণে লাগে, হয় নে নহয়? গতিকে আমি ক'লৈ যাম? আমি সদায় পিয়ালি ওচৰত লাগি থকা ৰিটেইলাৰ শ্বপজনৰ ওচৰলৈ যাম, হয়নে? এই ৰিটেইলাৰ শ্বপজনক যেতিয়া আমি বস্তু এবাৰ ক'ম যে আমি এতিয়া লাক্স চাবোনটো, আমি যেতিয়া টিভিয়ে বাতৰি কাকতে যেতিয়া দেখিম যে লাক্স চাবোনটো লৈ এপিচ চাবোন ওলাইছে, চাবোনটোৰ গুণাগত মানদণ্ড বহুত ভাল, গতিকে আমি কাক ডিমাণ্ড দিম যে আমাক লাক্স চাবোন লাগে? কাষ্টমাৰে গৈ কাক ক'ব? ৰিটেইলাৰজনক ক'ব। ৰিটেইলাৰজনে কি কৰিব? আপোনাৰ হ'লচেলাৰৰ পৰা আনিব, হয়নে? ইয়াত কোম্পানীয়ে বস্তুটো মেনুফেকচাৰিং কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে কি কৰিব? এজেণ্টৰ লগত টাইপ কৰিব যে মই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বস্তু মেনুফেকচাৰিং কৰিছোঁ, যিটো বস্তু এওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰাব লাগে, তাৰ কাৰণে পাব্লিচিটি কৰিব লাগে, এড দিব লাগিব, হয়নে? টিভি হওক, বাতৰি কাকত হওক, ৰেডিঅ' হওক, ডাঙৰ ডাঙৰ হৰ্ডিংছ হওক, তাত তেওঁলোকৰ এডভাৰটাইজিং লাগিব। আৰু এডভাৰটাইজিং লগাৰ লগে লগে এই কথাখিনি এজনে গম পোৱাৰ লগে লগে কি কৰিব? ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ চেণ্টাৰবিলাকলৈ বস্তুটো আহি যাব। ইয়াত এজেণ্টে যেতিয়া এডভাৰটাইজ কৰিব, হয়নে বাৰু? এডভাৰটাইজ নকৰিলে আমি বস্তুটো গুণাগত বা আমি গম নাপাম কি বস্তু ওলাইছে, হয়নে বাৰু? আজিকালি টেকন'লজিৰ যুগ, ৰাতিৰ ভিতৰতে আপোনাৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমত দি দিয়ে, আমি গম পাই যাওঁ, হয়নে? গতিকে এই ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ পৰা আপোনাৰ হ'লচেলাৰ আহিব, হ'লচেলৰ পৰা আপোনাৰ ৰিটেইলাৰ চব এনেকে ধৰণে আহে, আৰু এই মাজৰ মানুহখিনিত কি হয়? 45% আপোনাৰ মাজৰ মানুহখিনি খাই পেলাই 55% কোম্পানীয়ে পায়, আৰু গোটেই 100% পে কৰে কোনে? আমাৰ এই কাষ্টমাৰজনে, হয়নে বাৰু? আমি সেইটো মাধ্যমতে থকা নাই জানো? আগত চাবোন খাওঁতে কোনোবাই পইচা পাইছিলে নি বাৰু? নিমখ খাওঁতে পইচা পাইছিলে? হালধি খাওঁতে পাইছিলে? কথা কওঁতে পাইছিলে? নাপাওঁ নহয়। কিন্তু এতিয়া কি হয়? এই চিষ্টেমত থাকিলে আমাৰ ঘৰৰ ইনকামবোৰ এই মিডিল মেনবিলাকে লৈ যায়। ইয়াত থকা যিখিনি মিডিল মেন, তেওঁলোকে 45% খাই দিয়ে, কোম্পানীৰ পৰা 100 টকাৰ বস্তুটো আমি পে' কৰোঁ, গোটেই 100% পে' কোনে কৰোঁ? কাষ্টমাৰজনে কৰে। এইটো ব্ৰিটিছসকলে দি যোৱা নাম কাষ্টমাৰ, কষ্ট কৰি কৰিব, হয়নে? এইটো যদি ভাগ কৰি দিয়ে কাষ্টমাৰ হয়, কষ্ট কৰি কৰিব। মানে আমি কষ্টই কৰি আছোঁ। আজি বজাৰখনত আমি চাকৰি কৰিছোঁ, ব্যৱসায় কৰিছোঁ, খেতি কি টকাখিনি আমাক ক'ত লাগে? এই মাৰ্কেটৰ পৰা বস্তুখিনি কিনিবলৈ নহয় জানো? হয়নে বাৰু? গতিকে এই মাৰ্কেটৰ পৰা বস্তুখিনি কিনিলে যদি আমাৰ ঘৰলৈ ইনকাম আহে, তেনেকে ধৰণে কোম্পানীয়ে ভাবিলে কি যে এই চিষ্টেমত যদি থাকে, কাষ্টমাৰজনৰ ভৱিষ্যত সদায় অন্ধকাৰ হৈ থাকিব, জিৰ'য়ে হৈ থাকিব। তেওঁ জীৱনত কেতিয়াও উন্নতি হ'বলৈ নোৱাৰে, বা তেওঁলোকৰ সপোনবিলাক বাস্তৱ কৰিব নোৱাৰে। তেতিয়া কি কৰিলে? আমাৰ 2000 চনৰ আগষ্ট মাহত আমাৰ ফেশ্বন শ্বুটিং প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ আণ্ডাৰত ICM নাম দি আমাৰ এই কোম্পানীটো কি কৰিলে? নেটৱৰ্ক চিষ্টেমত এৰি দিলে। নেটৱৰ্ক মানে গম পাইছে ন? নিউ আৰ্ণ টেকনলজি, এটা টেকনলজিত এৰি দিলে, য'ত কি থাকিব? যে ইয়াত কোম্পানী থাকিব, আৰু ইয়াত এছ'চিয়েট বায়াৰ নাম দিলে আমাক। এই মাজৰ মানুহখিনি গোটেইখিনি নাইকিয়া কৰিলে, আৰু ইয়াৰ যিটো 45% পাইছিলে, এইটো আমাক দিলে 45%, আৰু কোম্পানীয়ে 55% কোম্পানীয়ে লৈ আছে। 100% হ'ল নাই বাৰু? তাৰমানে কি হয়? এডভাৰটাইজ আমিয়ে কৰিম, বস্তু আমিয়ে ইউজ কৰিম, আৰু আমাক কাষ্টমাৰটোৰ ঠাইত এছ'চিয়েট বায়াৰ এটা নাম দিলে, যে আমি কোম্পানীৰ বস্তু যদি ভাল হয়, তেতিয়াহ'লে আমি ইউজ কৰি 10জনক কি 100জনক ক'ব পাৰিম। টিভিৰ ভিতৰত কোৱা কথাটো সঁচা হ'ব পাৰে, মিছাও হ'ব পাৰে, হয়নে নহয়? মাধুৰী দীক্ষিতে গা ধুব ক'লেহে আমি ধুম নেকি? হয়নে নহয়? আমিতো এনেও ধুম।
অমিতাভ বচ্চনে টৰ্চ জ্বলাব ক'লেহে আমি জ্বলাম নেকি? আমিতো এনেও জ্বলাম। অমিতাভ বচ্চনে কোকা-কোলা খাব ক'লেহে আমি খাম নেকি? এনেও খাম। কাৰণ আমাৰ এইখিনি আমাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুৰ ভিতৰত পৰিলে আমি খাবই লাগিব, ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব, হয়নে বাৰু? গতিকে এই বস্তুখিনি এই ধৰণে যদি যাওঁ, এইটো এটা চিষ্টেম দি দিলে, সেইটোৱে হ'ল RCM। আৰু এই RCMত আপুনি যদি এই মাজৰ মানুহখিনিৰ পইচাটো আমাক দিলে, ইয়াক আমি পাবলৈ হ'লে এটা চিষ্টেমত যাব লাগিব। আৰু এই চিষ্টেমটো আমি যদি RCM নকৰোঁ, যদি এনি আদাৰ বিজনেছ কৰোঁ, ধৰক ইয়াত এনি আদাৰ বিজনেছ কৰিলে 1 নম্বৰ কি লাগিব? আপোনাৰ কেপিটেল লাগিব, হয়নে? কেপিটেল লাগিব, ফাৰ্নিচাৰ লাগিব, প্লেচ লাগিব, মেন পাৱাৰ লাগিব, আপোনাৰ টেনশ্যন কি হয়? ফুল হ'ব। তাৰমানে আপুনি 10-20 লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰাৰ পাছত প্ৰফিট আপোনাৰ হ'বও পাৰে, নহ'বও পাৰে। কিন্তু RCMত কি হৈছে? ইয়াত কোনো কেপিটেলেই নালাগে, কেপিটেল জিৰ', টেনশ্যন জিৰ', প্ৰফিটেই। RCMত কাৰোবাৰ লছ হৈছে নেকি আজিলৈকে? আমি যে 2000 টকা দি বজাৰ কৰিলোঁ, তাত 2000 টকাততো 22,000 টকা বস্তু আহে, হয়নে নহয়? গতিকে RCM কৰিবলৈ ক'ৰবাত ফাৰ্নিচাৰ লাগে জানো? নালাগে। কেপিটেল লাগে জানো? নালাগে। আমাক মেন পাৱাৰ লাগে নে? মোৰ বদলি তেওঁ ক'বলৈ যাওক বুলি ক'ব নালাগে, হয়নে? আমি খালি চিষ্টেমটো ফ'ল' কৰিব লাগে। আৰু এই চিষ্টেমটো ফ'ল' কৰিলে যদি আমাৰ ঘৰলৈ 1000 টকাৰ পৰা 2000 টকা, লাখ টকালৈকে অহা মানুহ আমাৰ ওচৰত আছে। গতিকে আপোনালোকে ক্ৰমান্বয়ে গম পাব, দেখি যাব, আমাৰ ছাৰে ক'বই। আমাৰ মাজতো আছে, ৰয়েলটি টেকনিকেল আছে। এতিয়া চাওক, চাবোন তেল ঘঁহিলেও যে মানুহ ৰয়েলটি পায়, অসম্ভৱ নহয়নে? ৰয়েলটি 3জন মানুহে পায়, বিগ ছিংগাৰ, ৰাইটাৰ, এনেকুৱাবিলাকে নাপায় জানো? খেলুৱৈ, হয় নে নহয়? তেওঁলোকে ৰয়েলটি পায়। কিন্তু আমি চাবোন তেল ঘঁহিলেও 7 জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে ৰয়েলটি আহে, সম্ভৱ হয় নহয় বাৰু? বুজি পাইছে আপোনালোকে? মনবোৰ আকৌ ডাৱৰীয়া হৈ গ'ল। আকৌ এবাৰ হাত চাপৰি দি দিয়কচোন। তাৰমানে কথাটো কি জানেনে? সফল হ'বলৈ হ'লে 1000 বাৰ বিফল হ'ব লাগিব, চেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগিব। সফল হ'বলৈ আজিৰ দিনত পৃথিৱীৰ যিমান কেইজন মানুহ ধনী, তেওঁলোকে এটা সময়ত ঠাট্টা মস্কৰা টিকিং পাই গৈহে আজি সেই স্লেবটো পাইছে। আমিহে এতিয়া তেওঁলোকক ভালকৈ দেখিছোঁ, হয়নে নহয়? আজি আমাৰ মনত ৰয়েলটি টেকনিকেল যিসকল আছে, তেওঁলোকে একেবাৰে গ্ৰাছ ৰুটৰ পৰা কিমান ফিল্ডত ঘূৰি কিমান ঠাট্টা মস্কৰা টিকিং পাই বস্তুবিলাকৰ বিষয়ে সজাগ কৰিছিলে মানুহক। সেই সজাগ কৰাৰ বিনিময়ত আজি আমি এখন 10জন, 20জন বা 50জন মানুহ লগ খাইছোঁ, হয়নে? গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা হাত চাপৰি মাৰি দিয়কচোন। তেওঁলোকৰ যিখিনি ত্যাগ, যিখিনি তেওঁলোকে কষ্ট কৰিছে, সেই কষ্টৰ বিনিময়ত আমি আজি ইয়াত কমকৈ হ'লেও আমি এখন প্লেটফৰ্মত আমি গোটেইকেইজনে লগ খাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, হয়নে? এইটো RCMৰ পাৱাৰ হয় নাই বাৰু? RCMত আমি MLM বিজনেছত কি হয়? বহু মানুহে একত্ৰিতভাৱে কৰা এখন সমাজ, যিখন সমাজত সকলোৱে সকলোৰ ভালৰ কাৰণে চিন্তা কৰে, হয়নে? আমাৰ সমাজত, আমাৰ RCM সমাজখনত মই যদি ৰয়েলটি পাওঁ আৰু 10জনক আমি ৰয়েলটি আহিবলৈ চিন্তা কৰোঁ নকৰোঁ? হয়নে? সদায় লোকৰ বাবে চিন্তা কৰে। নেটৱৰ্ক বিজনেছ বা আমাৰ RCM বিজনেছত সদায় বেলেগৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগে, তেতিয়াহে নিজৰ ঘৰলৈও টকাখিনি আহে। অকল নিজে কৰিলে ইয়াত নাহিব। আমাৰ বহুত মানুহে কি হয়, মই RCM জইন কৰিছোঁ, 200-300 বস্তু কিনিছোঁ, তেওঁৰ ঘৰলৈ ইনকাম আহিব জানো? নাহে নহয়। গতিকে শিকিব লাগিব। এটা চাওক, এটা কথা আছে, আপোনালোকে গম পায় যে আমাৰ 100% যদি ইউজ নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ঘৰলৈ টকা নাহিব। আমাৰ বহুত RCM দোকানবিলাকত মানুহবোৰে 200 টকা বস্তু কিনে, 300 টকা কিনে, 500 টকা কিনে। হ'ব জানো? আমাৰ ঘৰত মিনিমাম 2000 পৰা 5000 টকা বস্তু লাগে। এইটো কোম্পানী জানেই এজন মানুহৰ ঘৰত কি কি বস্তু লাগে। কিন্তু আমি কি কৰোঁ? 200 টকা ইয়াৰ পৰা কিনি বাকীখিনি আমাৰ গগৈ, ফুকন, শইকীয়া সেইবিলাকত কিনো। গতিকে লক্ষী আমাৰ আধাৰ পৰা আকৌ ঘূৰি যায় নাযায়? মই আগতে কৈ গৈছোঁ যে কম পানীৰ লগত আমাৰ বিনা পানী জড়িত থাকে। যদি বিনা পানীখিনি ভালকৈ আপুনি আয়ত্ব কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে সৰস্বতী লক্ষীও আপোনাৰ ঘৰলৈ নাহে, হয়নে? ইয়াত চিষ্টেমত ইনভেষ্টমেণ্ট নাই নহয়। অকল আপুনি কথাখিনিহে ক'ব লাগে, আৰু কথাখিনি ৰেডিমেড, এনেকুৱা নিজে বনায়ো ক'ব নালাগে। কোম্পানীয়ে চিষ্টেম দি থৈছে। প্ৰডাক্টটো যদি ভাল পায়, প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে কওক। আদাটো যদি ভাল পায়, আটাটোৰ বিষয়ে কওক। কাপোৰটো যদি ভাল পায়, কাপোৰটোৰ বিষয়ে কওক, হয়নে নহয়? পাপৰটো যদি ভাল পায়, পাপৰটোৰ বিষয়ে কওক। আমাৰ সজাগতা, এইটো ৱেলনেছ হয়। আমি সজাগতা, তাৰমানে RCMৰ কাজিয়াখন হ'ল কেমিকেল মুক্ত ভাৰত গঢ়া। আমাৰ হেল্থটোৰ প্ৰতি যিখিনি প্ৰয়োজনীয় বস্তু লাগে, কেমিকেলযুক্ত পৰা আঁতৰি আমাৰ যিখিনি কেমিকেল মুক্ত লাগে, সেই বস্তুখিনিহে RCMত আছে, বেলেগ বস্তু নাই। RCMত সদায় আপুনি কেমিকেল ফ্ৰী প্ৰডাক্ট পাব। আমি ডিচিশ্যনটো আমাৰ, আমি কেমিকেলযুক্ত খাম নে কেমিকেল মুক্ত খাম। যদি আমি কেমিকেলযুক্ত খাওঁ, চলি থাকিম, কিন্তু 40-45 বছৰৰ পিছত আমাৰ শৰীৰটো ক্ৰমান্বয়ে বেমাৰে বাল হ'ব। কিন্তু আমি কেমিকেল মুক্ত বস্তু যদি খাওঁ, হয়তো আমাৰ মানুহটো মেন ইজ মৰ্টেল, মানুহটো মৰিবই, কিন্তু জীয়াই থকালৈকে এটা ভাল স্বাস্থ্যলৈ জীয়াই থাকিব পাৰিব, হয়নে? হয়নে নহয় বাৰু? আপোনালোকে ইয়েছ ন কিবা এটা ক'ব, নহ'লে আমাৰ ছাৰ আহি আছে। ইমান ডাঙৰ এজন আমাৰ RCMৰ
মহাগুৰু আমাৰ মাজত আছে। যদি আপোনালোকে একদম মুখ চুখ ফুলাই বহি থাকে তেতিয়াহ'লে মনটো ভাল নালাগিব, গম পাইছেনে? মানে বৰষুণ দিছে, খঙতে আহিছে, ইয়াত অলপ ডপ্লিকেট হ'লেও হাঁহি থাকিব। এতিয়া কাৰোবাৰ ঘৰত পানী হৈছে, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পানীখিনি চাফা তাফা নকৰি ইয়ালৈ আহিছে, খং উঠি আছে। গতিকে সেই খংটোৱে আপোনালোকক বহুত ওপৰলৈ লৈ যাব পাৰে। খংটো অকণমান দেৰি কাৰণে হ'লেও জমাই ৰাখিব, হয়নে? গতিকে সেই খংটোৱে নহ'লে ভাল কথাবোৰ সোমাব নিদিব নহয়, হয়নে নহয়? বাধা দিব অকণমান দেৰিৰ কাৰণে বা এঘণ্টাৰ কাৰণে টেনশ্যনবোৰ খিৰিকীয়ে চিৰিকীয়ে কেৰিবেগে চেৰিবেগে ভৰাই থৈ দিয়ক, হয়নে? আপোনালোকে ৰিফ্ৰেছ হৈ বহক, আৰু এই ৰিফ্ৰেছটোৱে আপোনালোকৰ জীৱনত হয়তো বহুত ফেচ কৰিব। আমাৰ কি হয়, বহুত মানুহে কি কৰে, অকল RCM জইন কৰি ৰিটেইলাৰ কৰে, বায়াৰ আৰু ৰিটেইলাৰ হৈ থাকিলে লাষ্টত ফেইলাৰটো হ'ব। জয়ন্তত সেইটোৱে আছে, ফেইলাৰ হৈ আছে বহুত মানুহ, হয়নে নহয়? কিনিছে বস্তু বিকিবলৈ 200-500 কিনিছে, ৰিটেইলাৰ আৰু বায়াৰ হৈ আছে, তেওঁলোকৰ 7 জেনেৰেশ্যন ইনকামৰ কথা বুজিয়ে পোৱা নাই। ৰিটেইলাৰ বায়াৰ হৈ লাষ্টতো ফেইলাৰ হ'ব, ৰিজাল্টটো সেইটোৱে, হয়নে নহয়? নহ'লে কি হ'ব, গালু বালু খোলা কৰি দিলে অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে, হয়নে নহয়? আমি আজি ইমান দিনৰ পৰা যে আমি আহোঁ, ইয়াত আমি বহুত মিটিং কৰিছোঁ। চাবোন তেল ঘঁহিবলৈ মানুহক মিটিং কৰিব লাগে নে বাৰু? ভুজিয়া খাবলৈ মিটিং কৰিব লাগে নে? কিন্তু কৰিব লাগিব। কি কাৰণে কৰিব লাগে? ইয়াৰ প্ৰতিটো বস্তুৰ কেমিকেল মুক্ত কি কি আছে আমি জানিব লাগিব। আজি আমি RCMৰ নিমখটোত কিমান আয়ডিন আছে, আমি মাৰ্কেটৰ নিমখটোত কিমান আয়ডিন আছে আমি নাজানো, জানে জানো কোনোবাই? আমি যে নিমখটো খাওঁ কিমান পৰিমাণৰ আয়ডিন থাকিব লাগে জানে জানো? আমাৰ শৰীৰটোৰ কাৰণে 21 pp আয়ডিন থাকিব লাগে, যিটো আমাৰ RCMত আছে। বেলেগ মাৰ্কেটতো নাথাকে 21 pp আয়ডিন। যদি আয়ডিনযুক্ত নিমখ নাখায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ গৰল বেমাৰ, শৰীৰৰ বিভিন্ন বেমাৰ হয়, আমিতো এইটো নাজানো। গতিকে এই কথাখিনি যে RCMত আছে সেইখিনি জানিব লাগিব নালাগে? এতিয়া আমাৰ RCMত TFM আমি চাবোন কৰোঁ, মাৰ্কেটৰ চাবোনত TFM নাই, বা TFM আছে যদিও আমাৰ মানুহে নাচায়, কিন্তু আমাৰ RCMৰ চাবোনত TFM 76% আছে। গতিকে 100% হাৰ্বেল। TFM মানে কি জানিব লাগিব, নহ'লে ফিল্ডত আপোনাক যদি প্ৰশ্ন কৰে, আপুনি যদি এডুকেশ্যন নোহোৱাকৈ, আমাৰ বহুত মানুহৰ কথাটো এইটোৱে হৈ আছে, আজি জইন কৰে মানুহ বুজাবলৈ যায়, প্ৰথম শ্ৰেণীত নাম লগাইছে, পৰীক্ষা দিবলৈ গ'লেই, হয়নে? গতিকে তেওঁ শিকা ছাবজেক্টটো আমি লাৰ্ণিং ছাবজেক্টটো নকৰোঁ, ডাইৰেক্ট টিচিং কৰিবলৈ যাওঁ। তেতিয়া কি হয় জানে, এজন মানুহে জইন কৰিয়ে যেতিয়া তেওঁ ফিল্ডত নামি যায়, মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন যেতিয়া কৰিব, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধুমুহা বস্তুটো কি বাৰু জানে? মন। এটা এনেকুৱা এষাৰ কথা কৈ দিব, সি আপোনাক তাতে গালি পাৰি থৈ আহিব, মোক কি বিজনেছত জইন কৰাই দিলে, এইটো আমুকে তামুকে তামুক কৈছে, তামুক খাইছে, প্ৰডাক্টটো ভাল নহয় বুলি কৈছে। সেইকাৰণে RCMে কৈছে যে আপোনালোকে 100% ইউজ কৰক, আৰু 100% ইউজ কৰি যদি ভাল লাগে তেতিয়া মানুহক কওক, যদি বেয়া লাগিছে নক'বলৈ কৈছে। নিজে কোম্পানীটো নিজে জইন কৰিছোঁ বুলি যদি আমি বস্তুটো বেয়া বস্তুটোকো ভাল বুলি কওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব, ভৱিষ্যতটো বেয়া হ'ব। কাৰণ আমি মিছা কথা ক'বলৈ, RCMে মিছা কথা ক'বলৈ দিয়া নাই। আমাৰ RCMৰ আগৰ ৰাইট, আমাৰ চিম্বলটো 3ডাল ৰাইট চিন আছিলে, আপোনালোকে পাইছে না নাজানো? আগৰ চেপ্টাৰত 3ডাল ৰাইট চিন আছিলে, সত্য কথা ক'বলৈ কৈছে সদায়। ইয়াৰ প্ৰফাইল সত্য, ইয়াৰ পে আউট সত্য, আৰু ইয়াৰ প্ৰডাক্টৰ প্ৰতিটো বস্তু সত্য। এতিয়াহে লগতো চেঞ্জ কৰিছে, আগত 3ডাল ৰাইট চিন আছিলে। গতিকে এই ৰাইট চিনটো আমি যিখিনি আমাৰ কাৰণে দিছে, প্ৰতিটো বস্তু শুদ্ধ, আমি শুদ্ধটো ক'ব লাগিব। আৰু শুদ্ধ ক'বলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, শিকিব লাগিব নালাগে? ক শ্ৰেণীত যোৱা ল'ৰাটোৱে ক শ্ৰেণীত প্ৰথম গৈয়ে যদি মেট্ৰিক দিবলৈ যায়, তে পাছ কৰিব নে ফেইল কৰিব? ফেইল কৰিব, ডেফিনেটলি ৰিজাল্ট বেয়া হ'ব। যদি শিকি 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 যাওঁ, এদিন ভাল ৰিজাল্ট হ'ব। আৰু তেনেকুৱা শিকি শিকি যোৱা মানুহ আমাৰ ইয়াৰ মাজতে আছে, ৰয়েলিটি আছে, ৰয়েলিটি অপেনাৰ বিগেনাৰ ঢেৰ আছে। গতিকে তেওঁলোকে এটা সময়ত তেওঁলোকৰ যিখিনি পইচা তেওঁলোকে পাইছে, তেওঁলোকে চেক্ৰিফাইচ কৰিছে। মই আপোনালোকক এটা কথাই কওঁ, শিকি থাকিলে মানুহৰ টকা আহিবই। আৰু শিকিবলৈ হ'লে বিপৰীত দিছে, আজি ইমান বৰষুণ দিছে, হয়নে? ইমান বৰষুণো বহুত মানুহ হ'ব লাগিছিলে, কিন্তু তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেইজনমান মানুহ আহিছে, ভগৱানে আপোনালোকক এই দিনটোৰ কাৰণে ৰাখি থৈছিলে, কিবা হ'লেও শিকিবলৈ, হয়নে? এই দিনটোৱে হয়তো আপোনাক কেইটামান কথাই যদি আপোনাক ভাল লাগি যায়, সেই পইণ্টকেইটাই আপোনাৰ জীৱনত বহুত উন্নত কৰিব। আমি কলেজত গ'লে প্ৰফেচৰে কৈ থাকিলে প্ৰতিটো কথা নোট কৰোঁ জানো? নকৰোঁ নহয়। যিটো কথা ভাল লাগে সেইটো কথা আমি নোট কৰি লৈ সেইটো আকৌ ঘৰত গৈ আওৰাওঁ, হয়নে? সেইটোকে কয় টাইম মেনেজমেণ্ট। 4খন কিতাপ, T for ট্ৰেইনিং, I for ইণ্টাৰেষ্ট, M for মেইনটেইন, E for আৰ্ণ আহিব। আমাৰ আজি ছাৰে এইখিনি গোটেইখিনি ছাবজেক্ট শিকা আমি কেনেধৰণে ইনকাম পাম, হয়নে? গতিকে মই এটা সাধু কথাই আজি এই মিটিংখন মই ছাৰক আমি আমন্ত্ৰণ কৰিম। এবাৰ এজন ডাৱৰে ঘোষণা কৰিলে, আজি যিহেতু বৰষুণ দিছে, মই সেইকাৰণে সাধুটো কৈছোঁ। এবাৰ ডাৱৰে ঘোষণা কৰিলে মই 10 বছৰ বৰষুণ নিদিওঁ। তেতিয়া কৃষকবিলাকে ভাবিলে 10 বছৰ যদি বৰষুণেই নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি খেতি কৰি কি লাভ? গতিকে তেওঁলোকে 10 বছৰ যেতিয়া বৰষুণ নিদিয়ে, খেতিৰ সামগ্ৰীবিলাক তেওঁলোকে ধুই পখালি কি কৰিলে, ভৰালে, ক'ৰবাত ক'ৰবাত থৈ দিলে। আৰু মানে 10 বছৰ বৰষুণ নিদিয়ে যে, কাৰণ ডাৱৰে ঘোষণা কৰিলে। কিন্তু তাৰ ভিতৰতে এজন খেতিয়কে কি কৰে, সদায় ৰাতিপুৱা গৈ তেওঁ হাল বাই থাকে। ওপৰততো ডাৱৰীয়া, সাধু কথা নহয় জানো? ডাৱৰেতো দেখি আছে, মানুহটোৱে কিয় হাল বাই থাকে? তাৰমানে ডাৱৰে চাওঁতে চাওঁতে এদিন ডাৱৰে সেই ৰাস্তাটো যাওঁতে আহি খেতিয়কজনক লগ কৰিলে, ক'লে হেল্ল' কৃষক ককাই, বোলে কি হ'ল, তুমি মোৰ ঘোষণাটো শুনা নাই নেকি? মই বোলে শুনি, তেওঁ ক'লে যে শুনিছোঁ। তেতিয়া মোৰ ঘোষণাটো যদি তুমি শুনিছা, তেতিয়াহ'লে তুমি কিয় সদায় হাল বাই আছা? তেতিয়া কৃষকজনে বৰ ধুনীয়া উত্তৰ দিলে,
তেওঁ ক'লে যে তুমি ঘোষণা কৰিলা, মই শুনিলো। তুমি 10 বছৰ বৰষুণ নিদিওঁ বুলি ক'লা, মই সেইটো শুনিলো। তুমি 10 বছৰ বৰষুণ নিদিওঁ বুলি ক'লা, মই যদি 10 বছৰ হাল বোৱা নাপাওঁ তেতিয়া মই হাল বোৱাটো পাহৰি যাব পাৰোঁ। গতিকে মোৰ প্ৰেক্টিচটো মই সদায় কৰি আছো, মই সদায় মোৰ প্ৰেক্টিচ কৰি আছো। এতিয়া ডাৱৰে ভাবিলে 10 বছৰৰ পিছত যদি ময়ো বৰষুণ দিব পাহৰি যাওঁ, লগে লগে ডাৱৰে গৈ বৰষুণ দিলে, বাকী খেতিয়কসকলৰ খেতি ভাল নহ'ল, খেতি কৰিব নোৱাৰিলে, আৰু সেইজনৰ খেতি নদন বদন হ'ল, তেওঁলোক ছাকচেছ হ'ল। তাৰমানে কি, সফল হ'বলৈ বিপৰীত স্থিতিটো নিজৰ কামখিনি কৰি যাব লাগিব। আজি ডাৱৰীয়া বতৰ বুলি যদি আমি ফাঁক দিছো, নিজক ফাঁক দিছো। আজি ৰ'দ বৰষুণ যদি ফাঁকি দিছো, নিজক ফাঁকি দিছো। গতিকে জীৱনত ছাকচেছ হ'বলৈ হ'লে 1 নম্বৰ ফাঁকিৰ পৰা, বাহানাবাজিৰ পৰা আমি আঁতৰিব লাগিব, হয়নে? আমাৰ জীৱনটো আমাৰ দেউতা দিনৰ পৰা আমি যিখিনি কৰিলোঁ, মই আগতেও কৈছোঁ যে আমি RCM খাব নাপাই কৰা নাই, পিন্ধিব নোপোৱাৰ কাৰণে কৰা নাই। আমাৰ এটা সপোন আছে, এই সপোনটো বাস্তৱ কৰিবলৈ বিনা ইনভেষ্টমেণ্টত কথা কৈ যদি আমি সপোনখিনি বাস্তৱ কৰিব পাৰোঁ, এই কথাখিনি যদি আমি অৱগত কৰি এটা সজাগ আৰু সচেতন সমাজ গঢ়িব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এটা পৰ্যায়ত গৈ আশীৰ্বাদ সহকাৰে ইনকাম ল'ব পাৰোঁ, হয়নে? RCM এটা সাইকোলজিকেল ৱৰ্ড, ইয়াত বহুত আছে। প্ৰশান্ত সাগৰত যিমান পানী আছে, আমাৰ ইয়াতো সিমান টকা আছে, আপুনি ল'ব পাৰে। আমি যিদিনাখনি জইন কৰোঁ, আমাৰ ব্লেংক চেক ইছ্যু হৈ থাকে, আমি কৰ্ম অনুসৰি তাত এমাউণ্ট ভৰাব লাগিব, সেইমতে আপোনাৰ টকা আহিব। তাৰমানে কি, নো লাৰ্ণ নো আৰ্ণ, মোৰ লাৰ্ণ মোৰ আৰ্ণ। গতিকে মই বিশেষ নকওঁ। আজি আমাৰ মাজত আমাৰ মহাগুৰু আছে, আমাৰ বিশেষ কেইজন আমাৰ ৰয়েলটি এচিভাৰ আছে, ষ্টাৰ প্লেটিনিয়াম আছে, সকলোবিলাক ইয়াতে উপস্থিত। মই এজন মানে ষ্টুডেণ্টহে, গতিকে মই বিশেষ নকওঁ। পৰৱৰ্তী দিনত আপোনালোকক লগ পালে ভাল লাগিব। গতিকে এটা হাত চাপৰি দিয়ক যদি ভাল লাগিছে। মোৰ কথাকেইটা বেয়া লাগিলে নেকি বাৰু? ভাল লাগিছেনে বাৰু? চাপৰ চুটি মানুহ কথা বেছি ভাল নালাগিবও পাৰে, কাৰণ মানুহটো চাইহে নিজৰ চাইডত কথাকেইটা কৈছোঁ, গম পাইছেনে? গতিকে এতিয়া পৰৱৰ্তী মিটিংখন চলাই নিবলৈ মই আমাৰ বৰ্মন ছাৰক পুনৰ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। বৰ্মন ছাৰক মই পুনৰ বাকী পৰ্যায়খিনি লৈ যাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ। জয় আই চি। ভৱিষ্যতে তেখেতৰ পৰা আমি এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বক্তব্য বা কথা আমি জানিব পাৰিম। আমাৰ মাজত এজন গুৰু বুলিও নহয়, মহাগুৰু বুলি ক'ব লাগিব, আজি উপস্থিত হৈছে সুদূৰ দিল্লীৰ পৰা। বাকী তেখেতক আমি মাতিব বিচাৰিছো, গতিকে আপোনালোকে বিচাৰেনে? তেখেতক মাতিব বিচাৰেনে? लागे को आएंगे कर देना है आएंगे क्या शायद ना धीरे से बोल रहे नहीं आएगा जोश चाहिए जोर से एक जोरदार ताली से हम सबको बुलाएंगे प्लीज जय श्याम तो एक भी से मैं आड़ा वाला बोल चाहिए जो सारा हमार कम सेकंड चले हम बांग्ला जना बो दाली में जाने का हो चलिए बस हो गया दादा हो गया इससे अच्छा मेरे को और कुछ नहीं लगता ये सबसे अच्छा लगता है मेरे को कल मेरे को 22 गमछा डाल दिया मेरा यहाँ तक आ गया मैं एक रख लिया बाकी बोला यार बस बस थैंक यू আৰু এখন আমাৰ কেপ্টেইনৰ ফালৰ পৰা পিন্ধাব মোৰ দেউতাৰ কথা শ্ৰী প্ৰভাত বৰ্মনে তেখেতক এখন কেপ্টেইনৰ ফালৰ পৰা 26 साल পুৰণা আছে ডিস্ট্ৰিক্টৰ চাই 26 साल पुराना है क्या नाम आपका प्रभात बर्मन सक्सेना जी की टीम में थे आप नहीं अभी भी आप पुलकदा की टीम में आ गए वेरी गुड
वेरी गुड। बाकी सारा नमस्कार। नमस्कार। जय हर श्याम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ये आप लोग थोड़ा उधर बैठोगे तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ होगा यार, आगे आ जाओ ना, हवा में आ जाओ, हवा में आ जाओ। दादा आप भी आ जाओ। ओल्ड रॉयल्टी अच्छी बात, आओ आप इधर, आप तो आओ, आपका हवा का मैं इंतजाम कर देता हूँ। तो इनके पीछे पंखा है, आप इधर आओ, नजदीक, जितना नजदीक रहेंगे उतना अच्छा। मेरा कम वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना, एनर्जी बचेगा। आफ्टर ऑल ओल्ड मैन, बूढ़ा हो गया हूं मैं आरसीएम करते करते। जय आरसीएम। दादा आप यहाँ आ सकते हैं, आ जाओ। ये हम वहां के पीछे क्यों रह रहे हो आप? कोई गलत काम थोड़े ना किया, आप इधर आओ, आपको बोल रहा हूँ। टी शर्ट अब यार, अरे बाबू तू भी आना। आर्मी का टोपी पहन के पीछे बैठेगा यार, कैसे काम चलेगा देश का? आजा आजा प्लीज कम। अरे इधर पास आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कम क्लोज, क्लोज रहने से कोई तकलीफ नहीं है। हो गया बातचीत? जय हर श्याम। आप लोग बातचीत करेंगे तो फिर मैं जय हर श्याम बोलूंगा, बातचीत बंद करने के लिए। अब थोड़ी देर के लिए बातचीत बंद कर। अच्छा, हम लोगों को सबसे पहले जानना है ये कि हम लोग क्यों आए इधर। नाम तो बता दिया ना मेरा आपने? बता दिया। मेरा नाम आर.के. झा है, मैं मधुबनी बिहार का रहने वाला हूँ। पहले एयरफोर्स की नौकरी करता था। नौकरी करते हुए मुझे आरसीएम बिजनेस मिला। आरसीएम 4 साल किया, उसके बाद मैं उस लेवल पे पहुंच गया जहां नौकरी से 6 गुना ज्यादा पैसा आने लगा। मैंने नौकरी को रिजाइन कर दिया और फुल टाइम आरसीएम। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, डिटेल में आगे बात करेंगे। पहले हम जानना चाहते हैं आप लोग यहाँ क्यों आए। वो एक गाना है ना, आप यहाँ आए किस लिए, है ना? कुछ सीखने के लिए आए ना, सीखने के लिए तो स्कूल होता है। इधर केवल सीखने का पर्पस तो नहीं है, ये बात तो मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, कुछ सीख के कुछ पाने। बहुत अच्छा, देखो पुराने लोग ऐसे ही होंगे, आपको अच्छी बात है, बता देंगे। ओल्ड इज गोल्ड। आप लोग बोला ये दादा बोलो सीखने के लिए, झूठ है, झूठ है। केवल सीख के क्या करोगे? सीखा तो बीए किया, एमए किया, है ना, बहुत पढ़ाई कर लिया, अभी तो कुछ है। बहुत से लोग होंगे, बहुत सारे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, आए नहीं ना, क्योंकि वहां स्कूल में क्या है, हम लोगों को एजुकेशन देते हैं, है ना। वहां कैसे पैसा कमाना है ये नहीं सिखाते हैं, कैसे अच्छा इंसान बनना है ये नहीं सिखाते हैं। और यहाँ हम लोग जो सीखते हैं और जो सिखाते हैं उसमें सबसे पहला बात ये सिखाते हैं, जय हर श्याम, जय हर श्याम। क्यों हलचल करते हैं आप लोग? जो जहां शांति से बैठ जाओ आप, कोई आए तो नहीं आए, आपको कोई हिलना नहीं है ना। जिसको आना था आ गया, जिसको ऊपर जाना होगा जाएगा ही जाएगा, है ना। जिसको इधर ही रहना है उधर ही रहेगा। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग ऐसे हलचल करोगे मैं भूल जाऊंगा मैं क्या बात करना चाहता हूँ, और फिर वो सारा बात लेके मैं वापस घर चला जाऊंगा। आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या बात कर रहे थे? स्कूल कॉलेज में हमें किताब का पढ़ाई करा देते हैं ना, और किताब पढ़ते पढ़ते मैंने एक चीज पढ़ा था, आप लोग शायद पढ़े हो नहीं पढ़े हो, हिंदी में था, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। समझाता हूं इसका मीनिंग आप लोगों को, शायद हिंदी में है समझ में। पोथी माने होता है बुक, पोथी पढ़ पढ़ वो बोलता है, वो अपनी भाषा है। पोथी पढ़ में किताबें पढ़ करके जग मुआ, ये दुनिया गया, मर गया, है ना। पंडित भया न कोई, पंडित माने ज्ञानी, पंडित से मतलब क्या है? ज्ञानी कोई नहीं हुआ। 2.5 अक्षर, 2.5 अक्षर में 2.5, 2 और आधा, 2.5 अक्षर कौन सा है? प्रेम का, प र संयुक्त एक ही मात्रा म, प्रेम का
पढ़े सो पंडित हो। है? ये 2.5 अक्षर जो पढ़ लिया वो ज्ञानी हो गया, है ना। और मैं वही 2.5 अक्षर प्रेम वाला पढ़ता हूं, है ना। इसीलिए ज्ञानी जैसा आपको दिख रहा हो यहाँ पे। मुझे वो 2.5 अक्षर RCM उसी से प्रेम हो गया। आप लोग प्रेम करते हो क्या? अच्छा, कितने लोगों को RCM से पैसा आता है, मेरे को ये बताओ पहले। पैसा आता है कितने लोगों को? जोरदार ताली बजाइए पहले आप लोग, फिर आके आप लोग। अच्छा, ये 4-5 लोगों को ये क्यों आता है, ये थोड़ा बताएंगे हमको? आप सबने ज्वाइन किया है ना RCM? ज्वाइन करा? ये 4-5 लोगों को क्यों आता है? हाँ मैडम, कुछ बताओ, आप लोग बताओ तो हम लोग और सीखेंगे। इंटरैक्टिव करते हैं यहाँ, इतने लोग में बहुत भयंकर काम करने की जरूरत नहीं है, हम लोग बातचीत करके सीखेंगे एक दूसरे से। इनको आया, आपको क्यों नहीं आया, है ना। पहला मेरा सवाल था, आप यहाँ क्यों आए, होना चाहिए क्लियर। जब तक नहीं होगा मैं यहाँ क्यों आया, मैं जानता हूं, है ना। आपको भी पता होना चाहिए क्यों आया। तो वो फिल्म का तो गाना जैसा नहीं है, आप यहाँ आए किस लिए, आपने बुलाया किस लिए, ये तो कोई मतलब नहीं है ना, है ना। यहाँ तो आने का कुछ मकसद है ना। लेकिन उस मकसद को अगर आप जानते हो कि यहाँ पे हम सीखेंगे और अपनी जिंदगी बदलेंगे, है ना। जिंदगी बदलेंगे। पैसा तो बाहर लोग बनाते हैं, पैसा बाहर। अब आप बोलोगे बनाना शब्द क्यों बोल रहे हो आप? बनाते हैं का मतलब ये होता है उल्टा सीधा, जैसे जिसमें टर लग जाता है, टर, वो पैसा बनाते हैं। जैसे मिनिस्टर, टर, है ना, कलेक्टर, कॉन्ट्रैक्टर, एक्टर, डायरेक्टर, ये लोग क्या करते हैं, पैसा बनाते हैं, है ना, है ना। हम लोग क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर, है ना। हम लोग ओ वाला नहीं है, ओ वाला नहीं है, हम लोग ई वाला है। इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूटर, कुछ कर तो फिर अर्न कर। तो वो लोग जो है पैसा बनाते हैं, हम लोग पैसा कमाते हैं। अब समझो दोनों में फर्क, पैसा बनाना और पैसा कमाना में क्या फर्क है। जिस पैसे की कमाई में आपका पसीना है, मेहनत है, उसे कहते हैं पैसा कमाना। और जिस पैसे में पसीना नहीं निकलता, एसी में बैठ करके ये पैकेट का पैकेट आता है, उसे कहते हैं पैसा बनाना। समझ में आ गया मेरा? तो हम लोग पैसा तो बना नहीं सकते, बनाना भी नहीं चाहिए, अनएथिकल है वो पैसा लेके मैं किसी को बहुत खुशी नहीं देखा। यानी कि आपको बाहर से दिखता होगा उनका बहुत बड़ा सा बंगला, बहुत बड़ा सा गाड़ी, 10 नौकर चाकर, लेकिन अंदर से खोखला है। अंदर से क्या है? खाली। दे आर नॉट इंटरनली हैप्पी, वो लोग खुश नहीं है, कोई भी नहीं है खुश। लेकिन जो मेहनत से पैसा कमाते हैं, पसीना जिसमें लगाते हैं, ईमानदारी करते हैं, एक दूसरे की मदद करके करते हैं, दूसरे का ख्याल रख के करते हैं, वो पैसा जब कमाते हैं तो वो पैसा क्या होता है? प्रसाद होता है। क्या होता है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैडम? तो हम लोग यहाँ पे लोगों को पैसा कमाना सिखाते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए सबसे बहुत जरूरी बात जो हम लोग इस सिस्टम में सीखा और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि हमें क्या है, किसी चीज का केवल इच्छा नहीं करना। क्या नहीं करना? इच्छा नहीं करना। डोंट डिजायर, इच्छा नहीं करना, डिजर्व करना। क्या करना है? डिजर्व करना क्या होता है? डिजर्व करना क्या होता है? इच्छा है, ये लड़की है ना, मेरे को अच्छा लगा, इनको मैं देखा बाजार में, इनके पीछे भाग रहा हूं, है ना, कभी सीटी बजा रहा हूं, कभी इनको आंख मार रहा हूं, है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यानी कि चेज करते हैं। क्या करते हैं? इनका पीछा करते हैं। दिस इज कॉल्ड चेजिंग। इनका पीछा करते हैं। अगर इनको गलती से मेरा एक्टिविटी अच्छा नहीं लगेगा तो ये सैंडल उठा के मार भी सकते। यस, मार भी सकते, मार भी सकते। ओके, ये क्या हुआ? चेजिंग। जब आप चेज करने जाओगे पैसे को भी तो आप पिट सकते हो। लोग पिटते हैं बाहर, राइट। लेकिन
अगर आप उसे डिजर्व करते हो, डिजर्व करना मीन्स आप उसके लाइक बनते हो, तो आप पैसे को क्या करते हो? अट्रैक्ट करते हो। क्या करते हो? बोलो मेरे साथ, अट्रैक्ट करते हैं। बोलो, मेरा पोता जो है ना, ग्रैंडसन, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बोलिए बोलिए, बेटा बोलो बोलो, क्यों नहीं बोलते? आप लोग तो बहुत अच्छा बोलते हैं। बोले अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि अट्रैक्ट करना मीन्स अपने तरफ खींचना, यानी कि आपके अंदर मैग्नेटिक पावर, चुंबकत्व जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो होता है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा अट्रैक्ट करने वाला हो गया तो इनके पीछे भागूंगा या मेरे पीछे आएंगे? मेरे पीछे आएंगे या मैं इनके पीछे भागूंगा? तो आप मेरे को बताओ, आप चेजर बनना चाहते हो या अट्रैक्टर बनना चाहते हो? अट्रैक्टर बनना चाहते हो। और बीसी छावरा साहब का मीटिंग था गुवाहाटी में, उन्होंने बहुत अच्छा बोला था, टू अट्रैक्ट द पीपल यू हैव टू बी अट्रैक्टिव। ये शायद सुना होगा, उनका पुराना सा डायलॉग है, जो भी उनका मीटिंग ये बोलते थे। तो अट्रैक्टिव होने के लिए क्या है? अच्छा शकल सूरत का जरूरत नहीं है। आपका चाल, आपका चरित्र, आपका व्यवहार, आपका बात करने का अंदाज, आपका लोगों के साथ रिश्ता निभाने का अंदाज। हमारे यहाँ क्या होता है, हर लाखों लोग हमारे बिजनेस में आते हैं, लाखों लोग, लेकिन वो छूट जाते हैं। क्यों? हम ज्वाइन तो करा लेते हैं, उनको केयर नहीं कर पाते। समझ पाते हैं? केयर नहीं करते उनका। हम तो सोचते हैं सर मैं 10 ज्वाइनिंग कर लिया, मैं 15 ज्वाइनिंग कर लिया। अब मैं हर वक्त किसी को ये डांट नहीं सकता हूं ना, करो। हम सोचते हैं कि चलो एक्सपीरियंस धीरे धीरे होगा, जो जो आगे बढ़ेंगे उनको पता चलेगा कि भैया ऐसे मुर्गी जैसे अंडा सब जगह देने से नहीं होता। इस बिजनेस में, इसको थोड़ा क्लीन हो गया, इस बिजनेस में मैं आपको एक बात बताता हूं। यहां पे आप देखे होंगे प्लान देने टाइम में कहते हैं ये हो आप, ये हो आप, और इसके बाद कहते हैं आपको 2 आदमी को लाना है। कितना? ए और बी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये अगर आदमी केवल 2 को लाएगा तो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा या नहीं चलेगा? मैं मुझे बताओ आप लोग, हाँ या ना बोलो, मेरे साथ बोलो, हाँ या ना। चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा, आपको सिखाना पड़ेगा। ठीक, आपको सिखाना पड़ेगा। सिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। दैट मीन्स यू हैव टू बी टीचेबल। आपको खुद लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा, है ना। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं तो इतना पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाता हूं, मैं लेक्चरर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं टीचर हूं, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने वो नेटवर्क किया, मैंने वो किया। सब फालतू है। जो काम आप कर रहे हैं ना, उसके बारे में सीखना है। आपको 50 चीज का नॉलेज है, उधर काम नहीं आएगा ना। आप मेरा बात को समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं ना? आपको 50 चीज का नॉलेज है, यहां तो काम नहीं आएगा ना। आपको इस चीज का नॉलेज होना है, तो सबसे पहले क्वालिटी आप में क्या होना चाहिए? आप टीचेबल होना चाहिए। टीचेबल मतलब आपको जो सिखाता है वो आप सीखने लायक होना चाहिए। यानी कि इस मीटिंग में बैठा तो मैं अक्सर देखता हूं, अगर मैं थोड़ा सा इधर कर दूं पंखे को, अरे ये क्या है भाई, सुनने लगते हैं, तो नींद आ जाए। नींद आ जाता है, नींद आता है। आंटी जी देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। नींद क्यों आता है? बोलो मेरे को, नींद क्यों आता है? वो थके हुए इसलिए, थके हुए इसलिए, रात को सोया नहीं इसलिए। हाँ जी, हाँ जी बताइए ना, किस लिए नींद आता है? सर बताओ ना। आप लोग मीटिंग में कभी कभी सो जाया करते हो, है ना? दो कारण है। हाँ 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 बताइए सर, बताइए। एक ईश्वर पर ध्यान नहीं, हाँ दूसरा शरीर भी कमजोर हो सकता है। तो शरीर कमजोर होने के लिए तो रिचार्ज हो सकता है। मैं आपका दोनों बात को नहीं मानूंगा। मैंने सबसे पहले क्लियर किया था, ये एक शब्द मैंने बोला था, प में एक ही मात्रा, प्रेम, प्रेम, है ना। अंग्रेजी में लिखूं तो LOVE, क्या? मैं लव गुरु नहीं हूं लेकिन एक चीज तो मैं जानता हूं कि आज मैं अगर यहां हूं तो ये इसी के बदौलत,
लव के बदौलत। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। अभी लड़की तो कोई छोटी सी दिख नहीं रही है, नहीं तो मैं आपको अच्छा मैं आंटी का एग्जांपल देता हूं। जब किताब खोल के हम लोग यंग लड़का लड़की की बात कर लेता हूं थोड़ा सा। यंग लड़का को आप या यंग लड़की को किताब खोल के बोलो पढ़ने के लिए, कल आपको पेपर है, परसों पेपर है, खोल के बैठेगा, थोड़ा देर में उसे नींद आने लगता है। ऐसा होता है क्या? फिर माँ बाप बोलते हैं अरे पढ़ना तेरा 4 दिन के बाद पेपर है। आपको बोलना पड़ा ऐसे? बोलना पड़ता है। अजी बोलो ना मैडम, ये मैडम क्यों ऐसे बोलती नहीं है? आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, हाँ या ना बोल दो। बच्चे को बोलना पड़ता है पढ़ो, पेपर है आपका। बच्चा बोलता है नींद आ रहा है। अच्छा ठीक है, उसी बच्चे को अगर आपका घर में वो लोड़ा है, उसको किसी लड़की से प्यार हो गया, वो ग्रुप में मोबाइल लेके बात कर रहा है, ठीक है, वो सारी रात बात करेगा, उसे नींद आता है क्या? नहीं आता है। कभी कभी माँ को दरवाजा खटखटा के बोलना पड़ता है बेटा अब तो सो जा। लड़की है तो उसका मोबाइल छीनना पड़ता है, कितना देर बात करेगी? मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। मैं गलत बोल रहा हूं तो ताली बजाओ आप लोग। देखो मैं क्यों बोला गलत बोल रहा हूं तो ताली बजाओ। मैं ये चेक करना चाहता था आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे कि नहीं। मजा आ गया। देखिए ये चेक कैसे करते हैं। ये चेक करने का पॉइंट है, नहीं तो क्या जो ध्यान से नहीं सुनेंगे वो तो अरे ताली बज रहा है। सर ने बोला ताली बजाना। तो ये मैं सच्ची बात बता रहा हूं कि नहीं? दैट मीन्स जो प्यार करेगा है ना, वो समझ सकता है कि प्यार जो करते हैं उनके लिए नींद, वो गाना ना, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहां दिल खोए, है ना गाना, है ना? आरसीएम बिजनेस में, हाँ आरसीएम बिजनेस में अगर कोई टारगेट ले लेता है, कोई टारगेट, मैं आऊंगा उसके ऊपर, मैं अपने बारे में बात करूंगा, तो किसी का भी टारगेट, कैसा भी टारगेट हो सकता है। आपका हो सकता है कि मैं 50,000 कमाऊं, 1 लाख कमाऊं, ये टारगेट हो सकता है। आपको हो सकता है कि मुझे रॉयल्टी चाहिए, आपका टेक्निकल चाहिए, आपका एमराल्ड चाहिए, जो भी टारगेट है ना? इस टारगेट से अगर आपको प्यार हो गया तो फिर ना किसी मीटिंग में आपको नींद आएगा, ना आपको घर में चैन आएगा। क्या? मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप घर में बैठेगा ना, आपको चैन नहीं आएगा, आप बेचैन हो जाओगे, समथिंग मिसिंग। अगर आप इसे प्यार करते हो तो, नहीं करते हो तो भाई, हाँ मैडम, जय से मैडम। आप अगर अगली बार कोई बोला तो मैं यहां बुला लूंगा उसको, उन्हीं को बोलना पड़ेगा, मैं सुनूंगा उनका बात। मैं भूल जाता था, अब बूढ़ा आदमी हो गया ना। आप ये बात समझना, आपको दिमाग में रखो, ये बूढ़ा आदमी है, रखो दिमाग में, रख लो, रखो मैडम, रखो ना, ये बूढ़ा आदमी है। बोलो सभी, ये बूढ़ा आदमी है, ये बूढ़ा आदमी, ये भूल जाता है, ये भूल जाता है। हम लोगों को चुप रहना है। तो इसके बाद मुझे नींद ना आए और फिर ये आदमी घर में नहीं बैठेगा। मैं 2 दिन से रंगिया में था, एक लीडर का काउंसलिंग किया, उसको बोला भाई आप टारगेट जब तक छोटा मोटा लेता रहेगा आप कामयाब नहीं होगा, मेरा बात मान लो। मैं उस थ्योरी में हूं कि छोटा मोटा टारगेट लेने वाला कामयाब नहीं होता है। आरसीएम बिजनेस में अब बड़ा लो। बोला सर मैं क्या लूं? मैं बोला आपके हिसाब से कम स्टार पर्ल का टारगेट ले लो। फिर उसने बोला कैसे होगा? मैं उसे थोड़ा बहुत समझाया, परसों समझाया, कल मुझे मिला, बोला सर मैं सारी रात सोया नहीं। मैं बोला क्या हो गया? बोला सर मैं ये सोचता हूँ ये टारगेट अब कैसे होगा और क्या करना पड़ेगा मेरे को। तो मुझे नींद ना आए, हो गया कि नहीं? हो गया। वो कल पूरा दिन मेरे साथ घूमा है। मीटिंग के बाद मेरा गाड़ी 9:05 पे था रंगिया में, 5 मिनट पहले हम लोग स्टेशन पहुंचे हैं गलती से, नहीं तो ट्रेन लेट था इसलिए पकड़ में आ गया, ना छूट जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? बेचैन हो गया, नींद ना आए, चैन ना आए। अब उसे कामयाबी की तलाश है। कोई रोक सकता है क्या? किसी चीज के लिए इंसान इस कदर बेचैन हो जाए,
मैं एक जगह वो मेरे को लग गया था एक आदमी का। आप लोग सोच रहे होंगे अरे झा सर को दिल्ली से बुलाया, यहाँ तो 15-20 लोग ही बैठे हुए हैं, कभी अरेंज जो किए होंगे उनको दुख लगा होगा झा सर को इतना दोस्त बुलाया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 100 लोगों को बुलाओ, 500 लोगों को बुलाओ, एक आदमी को बुलाओ, 10 आदमी को बुलाओ। कल मीटिंग के बाद मैं एक आदमी से मिला हूं। कितने से? मैं बोला यार तेरा जो सबसे ऐठा हुआ है ना उसके पास ले चल आज मेरे को, तू है ना। तो मेरे को 3 लोगों के पास लेके गया। एक आदमी के पास थोड़ा देरी लग गया क्योंकि वो बाहर था, थोड़ा वेट करना पड़ा हम लोगों को। गिरिंदा बार बार फोन कर रहा है मेरे को, सर आपका गाड़ी है, सर आपका गाड़ी है। क्योंकि गिरिंदा को एक बात पता है, जब मैं आरसीएम की बात करता हूं तो मैं दुनिया को भूल जाता हूं। क्या भूल जाता हूं? मैंने कभी कभी देखा है कि आरसीएम के मीटिंग में जब मुझे बुलाते हैं तो मुझे पेशाब लगा रहता है बहुत जोर का, लेकिन एक बार स्टेज पे चला जाता हूं मैं, अगर 2 घंटा रहूं 3 घंटा रहूं स्टेज पे, उससे बीच में मेरे को पेशाब नहीं लगता। समझ में आ रहा है आपको? अब वो कहां जाते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन प्रेशर फील नहीं होता मेरे को। मैं इसी एक बार क्या हुआ, असम में मीटिंग लेकर के पुलक पकड़िया मेरे साथ थे, मेरे को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे। कहां पे? एयरपोर्ट। और डिगारू के पास उसने बोला सर एक आदमी को मिलते हैं। मैं गया, उसे आरसीएम समझाने लगा, समझाते समझाते टाइम थोड़ा इतना हो गया मैं भूल गया कि मेरा फ्लाइट है। मैं जब तक गया वहां पे एयरपोर्ट पे मेरा फ्लाइट चला गया। दिस इज कॉल्ड लव। जिसके प्यार में आप सब कुछ भूल सकते हो वही तो मिलेगा आपको। मैं आपको इसलिए ये एग्जांपल देता हूं कि सब कुछ भूल के अगर इसको करोगे तो ये आपको कबूल करेगी। कबूल शब्द शायद उर्दू का है, समझ सकते हैं, एक्सेप्ट करेगी सबको भूल के। और आपका गर्लफ्रेंड है, थोड़ा खड़ा हो जाओ, आपका गर्लफ्रेंड है, ये आपका गर्लफ्रेंड है ना, ठीक है, देखो गर्लफ्रेंड है आपका, देखो ठीक है। अब आप तो मस्ती वाला आदमी है, आपको एक दिन इसने बाजार में देखा, आपके साथ में नहीं है, दूर में है, आपको देखा, उनसे नैन लगा रहे हो आप, उसके साथ भी फ्लर्टिंग कर रहे हो, उनके साथ भी कर रहे हो, उधर भी कर रहे हो, ये आपको क्या करेंगे? गाली देगा। और क्या करेंगे? विश्वास उठ जाएगा। और क्या करेंगे? शरीर चोहिन बोलेगा। क्या करेगा? कैरेक्टर बोलेगा ना, वो सब बोलेगा, लेकिन लास्ट में करेगा, डिसीजन क्या लेगा? हेट ही बोलेगा। तो हेट के बाद क्या करेगा? ये बैठो, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। देखा, बीमारी पकड़ में आ गया ना, इलाज होता है ना ऐसे। तो मैं जब प्यार की बात करता हूं तो प्यार मीन्स प्यार है ना। एक से प्यार किया, टिक जाओ उस पे, कुछ नहीं। मेरे जैसा प्यार करने वाला आपको मैं आपको बताऊंगा थोड़ा देर में, स्टोरी मैं सुनाई दूंगा आज का, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे पास। और यहाँ पे आपको विलेन भी दिखाऊंगा मैं आपके सामने। तो ये 2 आदमी अगर कामयाबी पे आपको ले जा सकता है तो तीसरे के चक्कर में क्यों पड़ते हो? लेकिन उसके लिए आपको खुद सीखना पड़ेगा, जिसके लिए 99% लोग तैयार नहीं होते हैं। 99% लोगों को लगता है, मैडम को लगता है मैं तो आज 30 साल से शादी हो गया, मैं घर चला रहा हूं, बच्चे पाल रहा हूं, ये कर रहा हूं, मेरे को क्या सीखना है इसमें? सीखना है सबसे पहले आपको बातचीत करने का तरीका सीखना है ना। आप घर में पहले उसके सास का बहू से झगड़ा हो गया, बहू का सास से हो गया, ननद का भाभी से हो गया, वो लड़का उधर भाग गया, आपको पता है इधर मिलते हैं आपस में ना, तो पता है हमारे गांव का वो लड़का वो लड़की को लेके भाग गया। ये बात को चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आप अपनी बातों को चेंज करेंगे, आपका जिंदगी चेंज होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उस बात करके कुछ मिला क्या मैडम? कुछ मिला आज तक? इनके घर का चर्चा, उनके घर का चर्चा, उनके घर का चर्चा, उनका घर में आज दाली खराब हो गया, उनके घर में ये चर्चा करके कुछ मिला क्या? लेकिन अगर इसका चर्चा आप शुरू कर देंगे तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? yes. तो सबसे पहले सीखना है। सीखना क्या है? अभी समीप दा ने बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लान समझाया आपको। आप मार्केटिंग प्लान इसका सीख लो, ठीक है। और कितना मार्केटिंग प्लान देना है कितनी कामयाबी के लिए, मैं आज रेशियो निकाल के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आपको वो करना है, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो, नहीं तो
वो मेरे पास एक आदमी ने मैसेज भेजा, आरसीएम समझ में आया तो पैसा ही पैसा, नहीं समझ में आया तो पहले जैसा। और इससे ज्यादा तो आपका नुकसान नहीं होने वाला। पहले पोजीशन में था, यहाँ पोजीशन में बैक टू पेविलियन। और हम लोग एक स्टोरी पढ़ा था, फिर चूहिया की चूहिया, पढ़े आप लोग? फिर चूहिया की चूहिया। कहानी नहीं बताऊंगा, टाइम खराब होगा आप लोगों का। अच्छा, आप सीख के इन दोनों को सिखा दो, इतना सिखा दो कि ये कम से कम 2 आदमी को ले आए, इतना सिखा दो। इसमें थोड़ा सा टाइम लो, आप सीखने में 10 दिन लो, 15 दिन लो, महीना दिन लो, आपको जितना मर्जी आप ले लो, लेकिन सिंसियरली सीखो। जितना जल्दी सीखेंगे उतना आपका फायदा होने वाला है। और सीख करके जो 2 लोगों को ज्वाइन किया, अभी 2 बच्चा पैदा, बच्चे 2 ही अच्छे बोलते हैं ना, टीसी जी ने भी यही बोला, बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन दोनों बच्चे लायक होने चाहिए। इसमें से अगर दोनों का दोनों नालायक निकल गया, फिर आपको तीसरा बच्चा पैदा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? क्यों हम बच्चा पैदा करते हैं? जिसको पैदा करते हैं खुद तो नालायक है, तभी तो नालायक। मेरा बात को बुरा मत मानना। एक आदमी का 4 लड़का था। कितना था? वो आदमी बड़ा खुश, ये जब भी मिलता था, इसको इंजीनियर बना दिया, इसको डॉक्टर बना दिया, इसको वकील बना दिया। यहाँ 3 को बोल के चुप हो जाता था, है ना? तो आदमी ने बोला, और चौथे को छोड़ो, वो तो नालायक है। क्या नालायक? आज छोड़ो, वो तो नालायक है। तो आदमी ने बोला, ये नालायक उसको किसने बनाया? तो मेरा कहने का मतलब क्रेडिट नहीं लेना है ना? क्रेडिट लेना नहीं, मैंने बनाया, किसी को कोई नहीं बनाता है। आप केवल यू कैन शो देम द वे, किसी को रास्ते बता सकते हो, चलेगा तो वही, है ना? किसी को रास्ते बता सकते हो। एक बार क्या हुआ, मीटिंग में मेरे को आया एक आदमी, कानपुर में, मैं मीटिंग लिख रहा था, मंच से नीचे उतरा, एक आदमी बोलता है, सर थोड़ा सा इधर किनारे आना। मैं बोला बताओ। बोलता है, सर थोड़ा मैं बहुत जल्दी सक्सेस होना था, टिप्स दो मेरे को। मैं यार ये 3 घंटे से मैं क्या दे रहा था? अब भी टिप्स मांगेगा। तो अगर आप लायक हैं तो आपके लायक बच्चे होंगे, गारंटी है। आप नालायक हो, आपके बच्चे नालायक हैं, फिर आपको ऊपर से अपलाइन आपका फोन करेगा, यार तो कुछ करता नहीं है ना? फिर आप बोले मैं क्या करूं, मेरा कोई सुनता नहीं है, मैंने तो 2 ज्वाइनिंग दे दिया बोलते हैं इधर लोग। मेरे को कल एक बुढ़ा बोल रहा था, सर मैं 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप कमा सकते हैं आपसे बिजनेस में, आप जो मुंह खोलोगे हो जाएगा। तो लेकिन आप इतना जो बोल रहे हैं, आप कब ज्वाइन किया? बोला 2 महीना हुआ है। सर मैं 15 आदमी दे दिया। वो टीचर है। अब देखो, टीचर समझदार होना चाहिए, वो ऐसे बात करते हैं, 15 आदमी दे दिया। क्या हो जाएगा 15 आदमी देने से? मैडम 15 आदमी देने से कुछ होगा? तो मैं उनका जो अपलाइन है, वो रिटायर्ड टीचर है, परमानंद शर्मा, जानते हो? मैं उनको बुलाया कि किनारे में, आप ही के टीम का है? अच्छा, मैं उनको किनारे बुलाया, तो आप जानते हो दरंगिया में जो मीटिंग हुआ है, तो मैं उनको किनारे बुलाया। मैं बोला एक बात बताओ, ये जो 15 आदमी दिया, उसमें कितना आदमी को आरसीएम समझाया, ये बताओ मेरे को। सर समझाऊंगा, धीरे धीरे सबको समझाऊंगा। मेरा बात मानिए, कुछ भी होने वाला नहीं है, मान लो मेरी बात। मैं अकेला इसको समझा और लोगों को समझाया, 100 लोगों को समझाया, 2 लोगों को समझ में आया। कितने को समझाया? 100 लोगों को समझाया, 2 लोगों को। और 2 लोग हमको करोड़पति बना दिया। 100 लोगों को समझाया, 2 को समझ में आया, 2 ही लोग मेरे को करोड़पति बना दिया। मेरा तीसरा चौथा लाइन नहीं है। लोग बोलते हैं मल्टीपल लाइन, बेवकूफी की हद होती है। मैं बोलता हूँ यार 2 ही लाइन चला, ढेर पैसा आएगा, मेरे को बहुत आता है। लोग तीसरा खोल देते हैं, चौथा खोल देते हैं, मल्टीपल लाइन खोल देते हैं, वो एक भी काम नहीं करता। और जिसका मैं ज्यादा लाइन देखा हो, वो सबका लाइन बेकार गया। एक को देखा 36 लाइन खुला हुआ है, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको उसका। 36 लाइन? हाँ, और एक लाइन में उसका जाता है 40 लाख का बिजनेस, दूसरे लाइन में 1,70,000 का बिजनेस, तीसरे में 2,000, और चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 10वां, 9वां, 0 0 0 0 0। अब वो 36 लोगों को अगर उस लाइन में डाला होता जहां 170 है,
तो कम से कम उसका 5 लाख का बिजनेस होता। क्यों आप ज्यादा लाइन खोल देते हो, ज्यादा लोगों को ले आते हो, तो भाई उसको कौन संभालेगा? संभालना तो आपको है। बच्चा पैदा किया, आप संभालना आपको है। आप आर के झा के भरोसे बच्चा नहीं पैदा कर सकते। गलत बोल रहे हो तो मेरे को बोलो। मैं इसलिए साफ साफ बात करता हूं कि मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी इल्यूजन में रहो, किसी भ्रम में रहो कि आरसीएम में मैं इतना आदमी दे दिया तो दे दिया, हो गया, आपका काम खत्म है। ठीक है, तो आप सीखिए और केवल 2 को सिखाइए अच्छा से। नहीं, अगर 2 आपको सीखता है तो तीसरा पैदा करिए, फिर नहीं मिलता है तो चौथा पैदा करिए, फिर 5वां पैदा करिए, 6ठा पैदा करिए, 7वां पैदा करिए, 8वां पैदा करिए। आपको जितना मर्जी आप पैदा करो, लेकिन कोशिश करो जहीं पे आप जिसको ज्वाइन कर रहे हो उसको सिखाने का कोशिश करो। लेकिन मैंने पहले कहा, आपको 100 में 99% लोग ऐसे मिलेंगे जो सीखने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। अच्छा, ये धेमाजी में इतने ही लोग पैसा कमाना चाहते हैं या और लोग चाहते हैं? आप ही लोग समझदार हो या और समझदार है लोग? धेमाजी में इतने ही लोग समझदार है और समझदार? हाँ, और भी है, और भी लोग है। अब उन लोगों को पैसा नहीं चाहिए क्या? और डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा? होगा डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन उसको आज सरदर्द हुआ होगा, उसका बीबी का लूज मोशन हो गया होगा, बच्चे का बर्थडे हो गया होगा, पैर में इसमें पानी घुस गया होगा, घर में पानी घुस गया होगा, भूखा हो गया, टी-शर्ट हो गया होगा, जरा धूप हो गया, जरा बारिश हो गया, जरा धूप हो गया, जरा बारिश हो गया। जितना बहाना है बना लो, उतना पैसा है ना। बहाने ऐसे तो पैसा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम लोग पढ़ते थे मैथ में। बहाना इतना तो पैसा। अब इसमें कितना जगह है देख लो। दोनों हाथ बंद है आंटी जी। और अगर बहाना ऐसा है तो पैसा। तो आप लोग आज स्थानीय, सबसे पहले मुझे आप वादा करो, आप बहानेबाजी नहीं करोगे। बोलो सभी, आप बहानेबाजी नहीं करोगे। जोर से बोलो, आप बहानेबाजी नहीं करोगे। ओ यार, आप तो मैं बोल रहा है ना, आप क्यों बोल रहे हैं? अरे क्या करते हो यार, यही तो देखो, ये कैसे होगा मेरे को बोलो। मैं बोला था, आप एक बोलने से क्या होता है, सभी तो बोलते हैं आप बहानाबाजी नहीं। अरे मैं कहाँ करता हूँ, लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है। अरे बाबा, अटेंशन का प्रॉब्लम है। आजकल मोबाइल देख देख के लोगों को छोटा छोटा रील देख के अटेंशन खत्म। हाँ, उसे निकाला छुट्टी में हाथ दो, यहाँ रहने के बोला यार। मैं एक दिन क्लास में पढ़ा रहा था, तो मैं बच्चे शैतानी कर रहे थे, तो मैं बोला तू जोर से सबको बोल, आप बोलो तुम नालायक हो, बोलो जोर से तुम नालायक हो। वो बोलने लगा तुम नालायक हो। थोड़ा साफ करेंगे इसको साफ कर। हेलो बिट्टू, happy birthday, I am in meeting, I'll call you after some time. Okay, tell me. How long it is? How deep? Of what? Then first of all, you should take that TT injection. इतना जोर से क्यों बोलते हैं आप लोग? Ikibo lagibo. ये आंटी नहीं बोलती है, ये सोच रही है मैं बूढ़ी होगी, मैं कैसे बूढ़ी अब। चलो, तो आपको अच्छा इंसान बनना है, आपको टारगेट लेके काम करना है। कैसे काम करना है, लेकिन मैं पहले अपने बारे में बता दूं कि मैं ऐसे कैसे काम किया, उसके बाद इस सब्जेक्ट पे आएंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने आपको बता दिया कि मेरा नाम क्या है, बता दिया, मैं क्या करता था ये बता दिया। और मैं जब एयरफोर्स में सर्विस करता था, मेरा बात को थोड़ा गौर से सुनना, आप लोगों को बहुत काम का चीज बता रहा हूं मैं। जब एयरफोर्स में मैं नौकरी करता था, उसी समय मेरे को आरसीएम बिजनेस मिला। उस समय मेरे पास में फ्री का राशन था। क्या था? ये 5 किलो वाला नहीं,
कि 5 किलो वाला जो सरकार दे रहा है वो नहीं, फ्री का राशन ऑथराइज हम लोगों को बिकॉज ऑफ सर्विस था, ठीक है। फ्री का राशन था, फ्री का लॉजिंग था, यानी कि घर मुफ्त का मिलता था हम लोग को फ्री का रहने के लिए। हम लोग ट्रैवल मुफ्त का करते थे, हमको ये मेडिकल फैसिलिटी फ्री था, बच्चे का एजुकेशन फैसिलिटी फ्री था, और उसके बाद मेरा कैंटीन फैसिलिटी था जिसमें आपको डुप्लीकेट माल नहीं मिलता, सब ओरिजिनल मिलेगा, ठीक है। ये सारे फैसिलिटी, गवर्नमेंट जॉब था, और मैं पढ़ा लिखा था, MA LLB डिप्लोमा इन होम्योपैथी, ठीक है। अब किस एंगल से मैं वीक था कि मैं RCM बिजनेस में आ गया? कोई एक एंगल बताओ। या तो पढ़ा लिखा कम है, मूर्ख है, तभी RCM करता है। लोग ऐसा सोचते हैं ना, अरे ये लोग पढ़ा लिखा कोरोना RCM करे, ऐसे बोलते हैं ना। तो मेरा कौन सा एंगल पकड़ रहे हो आप लोग? अरे इसको कोई रोजगार नहीं, क्या बोलते हैं यहाँ पे, वही बोलते हैं ना, इसीलिए कुछ नहीं कर सकता तो RCM कर रहा है। ना मेरे पास ये था कि कोई रोजगार नहीं था इसलिए, ना मेरे पास ये था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं था इसलिए। पढ़ाई भी अच्छी थी, रोजगार भी मेरी अच्छी थी, घर भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, ठीक है। और आपको राज की बात बता दूं, जब मैं RCM को सर्विस को मैंने रिजाइन किया था, उस समय मैं फ्लाइंग अफसर था। क्या था? ये ऑफिसर होते, ठीक है। यहाँ पे छोटा मोटा काम करने वाला RCM वाले को वैल्यू नहीं देता है, ठीक, पता है ना। ऐसे अगर कोई आदमी थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, कोई मैट्रिक पास के उसके पास जाएगा प्लान देने, ओ RCM कोरी सिलू, क्या बोलते हैं? कोई सिलू या कोरी सिलू, क्या बोलते हैं? कोरी सिलू बोलता है ना। अच्छा, कोई आदमी थोड़ा ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप चले जाओ, आप थोड़ा पढ़े लिखे भाई, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं। यानी कि लोगों को समझ में नहीं आता है ये क्या है, और मुझे भी समझ में नहीं आता था। मैं भी तो ऐसा ही आदमी था ना, मुझे भी ईगो था, आके जहाँ MA LLB एयरफोर्स का चाकरी करता है, इतना फैसिलिटी है, क्या करेगा लेकिन 3 महीने के बाद मेरे पास एक आदमी आया, मेरा अपलाइन DN सिंह, बोलो जोरदार ताली। आप DN सिंह, आप सबका DN सिंह। ये कितना होता है? ध्यान से देखना, कितना है ये? ठीक से देखो, कितना? 99,700। इतना एक आदमी चेक पाया था RCM से, कितना? 99,700। वो मेरे सामने उसका जेरॉक्स कॉपी रख दिया। पहले चेक आता था, जेरॉक्स कॉपी मेरे सामने रख दिया। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, क्योंकि उस जमाने में जब मैं उस समय अफसर नहीं बना था, अफसर तो क्विट कर, सर्विस छोड़ने के टाइम में बना हूं मैं, जब मैं रिजाइन किया उस टाइम बना था अफसर। तो उस जमाने में मेरा सैलरी था 16,500 का। कितना? उस समय गवर्नमेंट जॉब में आज से 22-23 साल पहले कम पैसा मिलता था, उसमें भी फौजी लोगों को थोड़ा कम मिलता था, ठीक है। 16,500। अगर मैं इसको 99 को 16 से डिवाइड करूं तो कितना होगा? मिनिमम 6 टाइम्स। मेरा छोटा छोटा आंख है, मैडम देखो इधर, हेलो, छोटा छोटा आंख, ये ऐसे फैल गया ऑटोमेटिकली, फैल गया मेरा। बिलीव नहीं हुआ, मैंने पूछा ये आप सही में चेक दिखा रहा है क्या? बोला हाँ। मैं बोला ये आदमी क्या करता है? बोला ये RCM करता है। मतलब पहले क्या करता था? बोला प्राइवेट का जॉब करता था, वो कमाता था कितना भाई? 2,500। कितना? 2,500 की नौकरी करता था वो। कितने का? मैं बोला कितना पढ़ा लिखा है? बोला सर 2,500 करने से आपको समझ में नहीं आता है? हाँ, वो ये क्या बोलते 10th क्लास को यहाँ क्या बोलते हैं? मैट्रिक। अंडर मैट्रिक है। क्या है? अंडर मैट्रिक। JRCM आंटी जी, तो है सुनने के लिए
इनको थोड़ा सोने का व्यवस्था कर दो ना दीपक ना। नहीं नहीं, इधर आया बेचारी दूर से, थोड़ा सा ग्रुप में फैन फैन लगा के दे दो, सो जाएंगे। अरे ये आदमी कितना पढ़ा किया, मैं कितना पढ़ा लिखा था। ए ठीक है, MA LLB डिप्लोमा इन होम्योपैथी। इसको कंपेयर कर सकते हैं इससे, इसको कंपेयर कर सकते हैं इससे, लेकिन इसको कंपेयर कर सकते हैं इससे, है ना। एक बात बताओ मेरे को, एक बात सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, हिमालय की चोटी पे चढ़ना है, क्या क्या चाहिए? जल्दी बताओ तो, एक एक करके मैं लिखूंगा इधर। हिमालय की चोटी पे you have to climb Mount Everest. What are the things required? What? बताओ मेरे को फटाफट फटाफट, जल्दी बताओगे तो जल्दी बात करूंगा। जल्दी जूता चाहिएगा, जूता, बाप रे, लिख दो जूता, सबसे पहले जूता, हाथ मोजा, हाथ मोजा, ग्लव्स, उसके बाद ऑक्सीजन, आए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, उसके बाद रस्सी, रस्सी, बाप रे, और बोलो विल पावर। हाँ अब आया, अब आया समझ में, विल पावर चाहिए। हाँ और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और चाहिए, और कुछ कुछ चाहिए होगा, कुछ कुछ और चाहिए होगा, अभी नहीं हुआ क्या, प्रैक्टिस। हाँ हाँ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, जल्दी जल्दी बोलो, आप लोग भी कुछ कुछ बोलो ना, क्या चाहिए। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, बोलो 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 ना, दिमाग नहीं काम कर रहा है क्या, कैसे कमाएगा आप लोग इतना पैसा, बोलो, दिमाग को दौड़ाओ, इसको दौड़ाओ दौड़ाओ दौड़ाओ, क्या चाहिए और बोलो ना सर, आपको पूछ रहा हूं, आप बोलो, आप बोलो दादा, आप बोलो। हिमालय की चोटी पे चढ़ना चाहिए, हाँ ये तो विल पावर शायद वही होता है, और बोलो, हाँ फास्ट एड, हाँ हाँ फास्ट एड है ना, और बोलो वाटर, बाप रे, खाना पीना, सोने का व्यवस्था, सोने का व्यवस्था, हिमालय पे भी सोने जाएगा। देखो आपका डबल लाइन सब क्या कर रहा है। ये लाइन खींच दिया, हिमालय पर्वत पे चढ़ने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए है, माउंट एवरेस्ट चाहिए, क्या चाहिए। मैं ऐसा सवाल क्यों कर दिया आपसे, बोलो पूछो, ये सब कुछ है, हिमालय ही नहीं है तो कहां चढ़ोगे। मैंने पूछा हिमालय पर्वत पे चढ़ने के लिए क्या चाहिए, पहले तो हिमालय चाहिए, ये तो किसी ने बोला ही नहीं। आज मैं ये सवाल क्यों किया, इसके पीछे एक कारण है, ये मेरे लिए हिमालय पर्वत से कम था क्या, कम था क्या, 16,500 को 99,700, तो ये क्या है, ये किससे क्यों चला गया ये आदमी, जिसमें टैलेंट मेरे से कम, एजुकेशन मेरे से कम, एवरीथिंग मेरे को लगता है सब कुछ कम, लेकिन क्यों गया, बिकॉज ऑफ द उसके पास वो सिस्टम था, मेरे पास वो सिस्टम, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ गया, ये सिस्टम हमको मिला, आप लोगों में से किस किस को मिला हुआ है सिस्टम, हाँ जी सबको मिल गया सिस्टम, कोई हाथ उठा ही नहीं रहा, अब हाथ उठाओ ना जिसको ये सिस्टम मिला। देखो कितना शर्माते लोग, ये कैसे पैसा आएगा बोलो मेरे को, आप पैसा भी शर्माता है आपके पास आने से।
आप शर्माओगे, पैसा भी शर्माएगा, नहीं जाएंगे, है ना। वो एक गाना ना, हम न जइबे ससुर घर। अरे बाबा क्या है गाना, आपको गाना वाना जानते होगे। इसको थोड़ा क्लीन करेंगे हम, इसको क्लीन करो। बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ, आप लोग सीखने का। देखो एक बात मैं बताता हूँ आपको, ये 99,000 आपको दिखाई दिया ना, मुझे ये दिखाई दिया एक अंधा था, अंधा अंधा अंधा, बोलो सभी, अंधा अंधा को क्या बोलते हैं? दिखाई जो नहीं दिखाई। ब्लाइंड, बोलो ब्लाइंड। ये सब शब्द आपको इस तरह, देखो एक बात बताता हूं, जब आप आरसीए बिजनेस करना चाहते हो ना, तो आपका शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में वर्ड भी वैसा होना चाहिए, सफलता वाला। अब मैं इसीलिए आपसे रिपीट कराता हूं। आप सोच रहे हो मेरे से क्यों रिपीट करता, मैं बच्चा थोड़े हूं। अरे यही सब शब्द आपके काम आएंगे। मैं जो बोलता हूं उस शब्दों को आप इस्तेमाल करके देख लो, क्या कयामत होता है। एक था अंधा, मेरे साथ बोलो, सभी बोलो, एक था अंधा। हाँ, उसको किसी ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, अंधा होने से बुरा क्या हो सकता है? क्या पूछा? What is worse than being blind? जो हिंदी नहीं समझते अंग्रेजी में समझ लो, ठीक है। तो अंधे ने बोला, यार इससे बुरा क्या हो सकता है ना। हम पहाड़ नहीं देख सकते, हम झरना नहीं देख सकते, हम उगता हुआ सूरज नहीं देख सकते, हम सुंदरता नहीं देख सकते, हम फूल नहीं देख सकते। लेकिन एक बात, वो गहरा सांस लिया, लेकिन एक बात है बेटा, मुझे तो भगवान ने आंख नहीं दिया, इसलिए मैं कुछ नहीं देख सकता हूं। मैं तो अपाहिज हूं, हैंडीकैप हूं आंख से। लेकिन मुझे दुख तब होता है जब उसके पास भगवान ने दो दो आंख दिया, वो भी चीजों को नहीं देख पाता। यानी कि बोला बाबा कहना क्या चाहते हो? बोला बेटा मैं अंधा, वो अक्ल का अंधा, वो सामने सब कुछ हो रहा है, दिखाई नहीं दे। ताली बजाइए आप। अब अगर ये 99,000 देखने के बाद मैं ये काम नहीं करता, तो मैं अंधा या अकल का अंधा? कल का ये तो मेरे को चेक दिखाया, जेरोक्स हो सकता है, डुप्लीकेट। मैं तो कहता हूं फेक भी होगा तो मेरा तो काम आ गया। मैं आपको ओरिजिनल दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ओरिजिनल देख लो। आप आज ही डिसाइड करो कि आप अंधे हो या अकल के अंधे हो। आज ही डिसाइड कर लो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, डू और करो या मरो, डू। और ये बीच का रास्ता क्यों लेते हो? यहाँ मैं देखा एक लेडी आए, बोले मैं 3 साल से कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो? आपसे मत करो। 3 साल से कर रहा हूँ, अपनी इनकम बताओ ना। हमारे बात का बुरा मत मानो, मैं हर्ट करने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन अगर मेरा हर्ट करने के बाद भी आपको बात समझ में आ जाए तो मेरे लिए अच्छी बात है। या तो टाइम बताओ ही मत, है ना। बोलो मैं धीरे धीरे आरसीएम को प्यार कर रहा हूं, या तो मेरे जैसे बोलो मैं आरसीएम को बहुत प्यार करता हूं। बीच का रास्ता, बीच वाला क्या होता है? बीच वाला क्या होता है? मैडम बोलो ना, मेरे साथ कुछ कुछ बोला करो। बीच वाला बोलो ना, बीच वाला क्या बोला? हाँ, वो नहीं होना है। या तो करो नहीं तो छोड़ो। आरसीएम को बदनाम मत करो प्लीज, है ना। देखो मेरे यारो, ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम। आरसीएम 3 साल करके अगर कामयाबी नहीं है तो आप आरसीएम को बदनाम कर रहे हैं, है ना। अभी मैंने क्या किया, मैं अकल का अंधा नहीं था। मैंने उसको बोला, डीएन सिंह को, कि ठीक है आप जाइए, मैं इसके ऊपर विचार करूंगा। अभी भी मैं नहीं बोला मेरे को ज्वाइन कर दो, क्योंकि वो तो किट लेके आया नहीं था, उससे डर था, मैं उसको भगा देता था अपने घर से। मैं बोला आप जाइए, मैं विचार करता हूं। डीएन सिंह हमारे घर से गया, उसका घर करीब 100-150 मीटर, मेरा उसके घर के बीच में एक पार्क था, उस पार उसका घर, उस पार मेरा घर। वो घर गया, दरवाजा अपना अंदर गया, मैं उसके दरवाजे पे ऊपर रहता था, पहुंच गया, दरवाजा खटखटा दिया, दरवाजा खोला, बोला सर आप? बोला हाँ यार, इतना दिन तुम मेरे पीछे भागते थे, आज मैं तेरे पीछे। ऐसे ही बोला था मैं। बोला आओ आओ सर आओ।
मैं बोला आओ नहीं, मुझे इसका मार्केटिंग प्लान समझाओ। बोला सर आपको 3 महीने से समझा रहा हूं, 3 महीने से। लोग 6-6 साल से मार्केटिंग प्लान देखते हैं, समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? ध्यान से नहीं देखते, क्योंकि मैंने भी नहीं। मैंने बोला भाई आज तक मुझे जरूरत ही नहीं लगा इसको समझने का, मैं क्यों आपका मार्केटिंग प्लान समझूं? बोला आज क्यों पूछ रहे? बोला आज मुझे लगता है कि मुझे मार्केटिंग प्लान को समझना नहीं, उसको तो आज मेरे को पी जाना है। समझाया मेरे को, ये कंपनी, ये कस्टमर, एक बेटी का कॉपी पे लेके पेज में लिख दिया। मैंने उस पेज को फाड़ लिया, अपना पॉकेट में रख लिया। अब बोला मेरे को ज्वाइनिंग कराओ। ज्वाइनिंग कराया। ज्वाइनिंग कराने के बाद मैं बोला आपके पास कितना किट है? बोला मेरे पास तो 6 किट है। आपको एक ज्वाइन करा दिया, 5 बाकी है। बोला दे दो। बोला फिर हम क्या करेंगे? मेरे को नहीं पता, अगर मेरे को ज्वाइन कराना है तो 6 दे दो, नहीं तो ये मैं फॉर्म भर के फिर देता हूँ। मैं वो ऐसा करने वाला नहीं हूँ। मैं ज्वाइन करी आंसू, क्या बोलते हैं आंसू, वो नहीं चलेगा इधर। मैं कर लिया तो कर लिया, समझ में आ रहा है? मैं कर लिया तो आप दे सकते हो 5 किट तो दो, नहीं तो ये फॉर्म फाड़ दो। बोला सर मगर तो, बोला पैसा तो, मैं बोला पैसा लेके तो घर से आया नहीं। आप बोला मैं पागल हो गया, मैं घर से तो ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, मैं साइकिल लेके फिर सीधा आपके पास पहुंच गया। मैं दे दो। बोला पैसा? मैं बोला कि पैसा देंगे आपको 3-4 घंटे के बाद। कितना? मैं वो अपने साइकिल के पीछे बांध दिया किट को, साइकिल से निकल गया। टाइम था 5:30। कितने बजे का टाइम था? 11:30 बजे रात को आया। 5 लोगों को ज्वाइन कराया। 6ठे आदमी को अपना वाला किट थमाया, उसको बोला पैसा दे दे, ये फॉर्म आपको मिलेगा 10 दिन के बाद। फॉर्म है नहीं, क्योंकि उस समय में नियरेस्ट जो पिकअप सेंटर होता था वो होता था कटिहार में। कहां पे? फिर 2-3 महीने के बाद राम सैकिया ने खोला पिकअप सेंटर तेजपुर, वो भी मिनी पिकअप सेंटर घर में। राम सैकिया कटलवारी, हाँ कितनी बार, यस। 2-3 महीना के बाद तो आंटी के लिए ताली और भी आता है। अच्छा मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, लोग कहते हैं बुढ़ापे में नींद नहीं आता, आंटी को तो मस्त मस्त नींद आ रहा है। ये क्या है? ये कुछ चक्कर है। आंटी रात को क्या करते हो? रात को क्या करते हो? सो जाया करो रात को जा चौकीदारी करते हो, दिन में सो जाते हो। मेरा बात का पूरा मत मान, मैं ऐसे मजा करके आपसे करता हूँ, ठीक है? मैंने सक्सेना जी की सैकड़ों मीटिंग ली है। सक्सेना जी मेरा क्रॉस लाइन हुआ करता था, लेकिन वो मुझे ही बुलाता था मीटिंग लेने के लिए। मैं ट्रेंड हो गया, मेरा लाइन चलता नहीं था अपना वाला, मैं ट्रेंड हो गया। एसके सक्सेना वो वहां पे रहता था ना अपना डेस्क में, बालीपरा में गया था ना। अच्छा हाँ, तो आपको पता होगा। बहुत मजा किया आरसे में मैं, ठीक। तो मैंने 5 किट लिया, जाके 6 लोगों की ज्वाइनिंग कराई। मैंने 5 का फॉर्म भरा, 1 का लेकर के 11:30 बजे रात में घर लौटा। उस जमाने में फोन नहीं होता था घर में, मेरे को किसी को पता नहीं कि ये कहाँ आज चला गया। पागल जब बाहर निकलता है तो घर वाले को बता के जाता है क्या मैं वहां जा रहा हूँ? जाता है क्या? मैं तो पागल हो गया। वो कहते ना एक बार किसी से वो फिल्म में देखते होगे, किसी लड़की को देख लिया वहीं पागल। बहुत से फिल्म में ऐसा होता है, वो मेरे नाम में देखो, मैं पागल हो गया। मैं पागल हो गया, घर पे पता है नहीं, चला गया साहब 5 को वो ज्वाइन करके घर में आ गया। बीबी बोली कहाँ गए थे? मैं बताता हूँ, पहले खाना दे। डीएन सिंह को पैसा दे। क्या बोला? मैंने बोला था 4-4.5 घंटे के बाद आता हूँ, 5 घंटे लग गए। ऐसे मैं 11:30 बजे आया, पैसा दे के मैं घर आ गया। इसके बाद मैं बोला डीएन सिंह को किट दो मेरे को। क्या दो? वो जब वो कहते हैं ना जिनको आप नहीं दोगे तो बोलेगा कुछ दो मेरे को, है ना। मैं तो नहीं बैठ सकता हूँ। डीएनसी बोला आज लाऊंगा, कल लाऊंगा, परसों लाऊंगा। और मैं डेली, जिस दिन मेरा ड्यूटी 5 बजे तक होता था, ड्यूटी होता था, उसके बाद मैं डेली कितना प्लान देता था? मिनिमम 5। कितना? मिनिमम 5। मेरे साथ बोलो, मिनिमम 5 लोगों को तो मैं आरसीएम समझाता था डेली, मिनिमम 5। और अगर संडे या हॉलीडे है,
फिर तो भगवान ही मालिक है। सुबह 5:30 बजे निकल जाना और 11:30 बजे रात तक जो मिला, लेकिन टिप्स नहीं रखा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? लेकिन ज्वाइन जब मैं किया था तो मैंने धीरे से डीएन सिंह को बात पूछा था। मैं बोला यार मेरे को 1 लाख रुपया कमाना है आरसीएम से। कितना बोला था? 1 लाख रुपया कमाना है। मुझे कितना टाइम लगेगा? कितना? उन्होंने बोला सर सही तरीके से, देखो यहां क्या बोला था? सही तरीके से ध्यान से इस वर्ड को मैं लिख इसलिए दिया कि आप देर तक देखते रहो इस वर्ड को। सही तरीके से करेंगे तो आप चूंकि पार्ट टाइम करेंगे 5 साल में हो जाएगा। क्या बोला? 500 500। ठीक है, मैं दिमाग में 2 चीज रखा, एक सही तरीका, एक 5 साल, और तीसरा 1 लाख। ये कभी नहीं भूलता था मैं। क्या? कभी नहीं भूला। अच्छा, 5 मार्केटिंग प्लान बहुत मुश्किल है। ड्यूटी के बाद घर में बीवी है, बच्चे है, बर्थडे है, पड़ोसी है, दोस्त है, दोस्तों के साथ बैठना है, इधर उधर की बातें करनी है, टीवी देखनी है, अखबार पढ़ना है, सिनेमा देखना है। ये सब करते हुए 5 प्लानिंग मार्केटिंग प्लान हो जाता था ना? हो जाता था ना? हाँ या ना बोलो ना? अरे हो जाता था ना? कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। बोलो, कुछ पाने के लिए, बोलो आप लोग सभी बोलो, प्रैक्टिस करो मेरे साथ। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अभी धान का खेती होता है सब में। धान पाने के लिए बीज उठा के, होना है ना? गलत बोल रहा हूं मैं? यस। नहीं, ये भी बीज खा लूंगा मैं, तो खाते रहो फिर धान पाओगे। तो मैंने क्या क्या छोड़ी? क्या क्या छोड़ी? टीवी देखना छोड़ दिया, बीवी के साथ बैठना छोड़ दिया, चाहे तो मैं ऐसे भी नहीं पीता हूँ, फालतू बातें करना छोड़ दिया, दोस्तों के घर जाना छोड़ दिया। क्योंकि दोस्तों के घर इसलिए छोड़ दिया कि वो पहला 5 ज्वाइनिंग मैंने दोस्तों का ही करा दिया था। क्योंकि इतना जल्दी कौन करेगा, उसको हम पे भरोसा था। बोला तू बोलता है तो कर लेंगे। अरे गधे, आज उन लोगों के नीचे 4-4 करोड़ का बिजनेस है, 1 पैसा नहीं आता। क्यों? मैं बोला तो कर लिया। उसके बाद ना मेरे से पूछा ना मुझसे बताया। अगर उसके घर स्थिति बहुत नाजुक, वो हम लोगों का जो क्वार्टर होता था ना एयरफोर्स का, उसमें एक सामने से अगर होगा तो एक पीछे भी रास्ता होता था, मीन्स बाहर जाने का रास्ता। वो लोगों को पता था कि यार के झा तो संडे को आएगा ही आएगा एक बार मिलने के लिए, और दिन तो जाएगा कहीं, संडे को आएगा ही। तो बीवी को बोलता था आगे से ताला मार दो। ये बताओ मेरे को, आप लोग बुरा मत मानना, वो आरके झा का एंट्री बंद किया या लक्ष्मी का एंट्री बंद किया था? लक्ष्मी का एंट्री बंद किया। कितने पागल लोग हैं। मेरा फर्स्ट जो 5 था, मेरा क्लोज लोग 1 पैसा भी नहीं कमाया। इसीलिए मैं बोलता हूं आपको, अपना इन्फ्लुएंस से जब भी आप किसी को लाओगे, लोग क्या करते हैं, साले को पकड़ लेते हैं। अरे तू साला है मेरा, तू नहीं मदद करेगा तो कौन करेगा? अरे तू जीजा है मेरा, तू नहीं करेगा मदद तो अरे बहन बता दे जीजे को यार, इन्हें ज्वाइन करेगा, मेरा थोड़ा चलेगा। ये मेरा ऑफलाइन बहुत तंग करता है, कम से कम 2 ज्वाइन निकालना है मेरे को। ऐसा ना, आपके जितने अपने होंगे कोई काम नहीं करेंगे, जितने नजदीक का होगा उतना आपका वैल्यू नहीं समझता होगा। सिंपल सी बात है। मेरा दोस्त तो उस टाइम भी सोचता था कि ये साला पगला गया है, हम लोग को साथ बैठता नहीं है। और स्थिति ऐसी थी कि हमारे एयरफोर्स में लंच ब्रेक होता था। देखो ये कहानी सुनने की है, आपके साथ होगा कल। लंच ब्रेक जब होता था 9 साढ़े 9 बजे हमारे यहाँ, तो सभी लोग कैफेटेरिया में चाय पीने के लिए जाते थे। मैं तो चाय पीता नहीं था, मैं चाय पीता नहीं था। अब वहां हमारे दोस्त जानने वाले या साथ के ऑफिस वाले जो खड़े होकर चाय पीते रहते थे, तो मैं सोचता था जाता हूँ धीरे से यार सिंह की बात करूंगा, तो दूर से देखता रहे मेरे को आते हुए, और यार आर के जा रहा है, आधा कप चाय पी के भाग जाता है। बिलीव करोगे आप लोग, आपसे भी भागेंगे। मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं, आपसे भी भागेंगे। जो आपका साथ में होगा आपको देख के भागेगा।
हद तो होगी, बाद में बताऊंगा। शर्मा जी का नाम लिख के रखता हूं, इनकी कहानी बताऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो मैंने तरीके से काम किया। इस बिजनेस में मेरा कोई गुरु नहीं था। मेरे लिए दुख की बात यह थी कि मेरा कोई, क्योंकि मेरा अपलाइन डीएन सिंह, वो मेरे से कम पढ़ा लिखा था, वो भी एयरफोर्स में। उसके ऊपर डी नाथ चंदेल जो सत्यनाथ जी के भी अपलाइन थे, वो भी मेरे से कम पढ़े लिखे, मेरे से जूनियर। उन लोगों को भी नेटवर्क मार्केटिंग का कोई ज्ञान नहीं था, तो मेरे को सिखाएंगे क्या? इससे अच्छा तो मैं थोड़ा पढ़ लिख लिया था। लेकिन बिना गुरु का ज्ञान होता नहीं है, बिना गुरु का। तो पहले तो मैं बता दूं, मैं पहले महीने जो काम किया, मैं पहले मेरी फर्स्ट डे, उसका मेरे को चेक मिला कितना, सॉरी स्टेटमेंट मिला 106 रुपये का। कितना? 106 रुपया स्टेटमेंट आया था। इसके बाद अगले महीने मैंने 17 लोगों की ज्वाइनिंग कराई। ये कैसे ज्वाइनिंग कराई मैं आपको बताता हूं। उस 17 में एक काम कर रहा है अभी भी, 17 में पहला 5 में कोई नहीं, 17 में एक। तो आप लोग सोचते हैं 15 दे दिया तो क्या हो जाएगा? 15 दे दिया तो ऐसे ही है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी है, एसेट नहीं है। एसेट कौन है? जो ग्रो करेगा बिजनेस को एसेट है। आप मेरे को बताओ, अपना देश में सबसे बड़ा एसेट क्या है? दुनिया कहता है इंडिया में बहुत एसेट है। क्या है? पॉपुलेशन है ना, ये एसेट है। एसेट है। 80 करोड़ जनता फ्री का राशन लेती है सरकार से, वो एसेट है या लायबिलिटी है? सोचो ना जरा, वो 80 करोड़ जनता अगर नहीं लेगा राशन, वो सभी टैक्स देगा जैसे हम और आप देते हैं, तो देश का कहां से कहां जाएगा? अब फिर वही लोग सबसे बात ज्यादा चिल्लाते हैं, मेरा देश पिछड़ा क्यों है, मेरा देश पीछे क्यों है? दूसरा लायबिलिटी है। आधे से ज्यादा जनसंख्या जो है हिंदुस्तान की, वो लायबिलिटी है। देश कहां से बढ़ेगा? इसी तरह से आरसीएम में एसेट कम, लायबिलिटी ज्यादा, कैसे उसका बढ़ेगा? नहीं, गलत बोल रहा हूं तो मेरे को बोलो, बताओ आप लोग। नहीं ना, तो ठीक है। अब मैं 1 लाख की टारगेट लेके काम शुरू किया। पहले महीने का आपको बता दिया। अब दूसरे महीने की कहानी मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं। 17 लोगों को मैंने ज्वाइन करा दी। लेकिन डीएन सिंह मेरे को बोलता था आज किट लाऊंगा, कल लाऊंगा, ऐसा करते करते 20 तारीख निकल गया। कितना निकल गया? अब मैं बोला यार तू तो किट लाएगा नहीं, मैं क्या जवाब दूं? लोगों ने, मैं तो पैसा पहले लेता था। आप लोग क्रेडिट का काम करते हो ना, ठीक है, बोल दिया मैं ज्वाइन करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं नहीं जाता था। प्लान समझ में आया, हाँ पैसे दे। काकोली सैक्या का गुल्लक फोड़वा दिया था मैं। तो गुल्लक में बेचारी 8 आना 4 आना जमा की थी। बोला भैया फोड़ दूं, वाला फोड़ दे, आरसीएम का ना तो फोड़ दे। तो मैं वैसा आदमी कड़क फोड़ा था। समझ में नहीं आया तो फिर मैं आऊंगा, ठीक है, लेकिन समझ में आया तो दे पैसे। तो मैंने सबका पैसा लिया था। लोग मुझे सब क्या हुआ बोलते थे। डीएन सिंह बोला कि सर मेरे को छुट्टी नहीं मिल रहा है। सैटरडे का दिन था, मैं तेजपुर से निकल गया, बस से आया गुवाहाटी, गुवाहाटी से अवध आश्रम पकड़ा, चला गया मैं बिहार कटिहार। कहाँ? जहां पे पिकअप सेंटर था वहां पे मैंने 20 किट लिया और लेके वापस आ गया। टोटल खर्चा मेरे को किट लाने में हुआ था कितना? जोड़ना इसको कितना था? लेकिन आपको एक बात मैं बताना छोड़ दिया कि मैं डिप्लोमा इन होम्योपैथी था, तो डिग्री लेके बैठा नहीं था। घर में मैं प्रैक्टिस करता था। घर में जब ड्यूटी से आता था तो प्रैक्टिस करता था। उसमें मैं करीब 2500 से 3000 रुपया कमा लेता था पर मंथ। ठीक है, कितना कमाता था? 2500 से 3000, 2500 पकड़ते हैं कितना? 2500। ठीक है, ये जो मैंने ये 17 लोगों को जो तैयार किया था, इसमें मैं 17 ही लोगों को प्लान नहीं दिया था, बहुत से लोगों को प्लान दिया था, और सभी नजदीक में नहीं थे। जो 3-4 किलोमीटर में होता तो मैं साइकिल जाता था, मैं साइकिल से, और अगर थोड़ा दूर होता था तो स्कूटर से जाता था। उसमें मेरे को 500-600 रुपया खर्चा हो गया। कितना? 500 धर लेते हैं। कितना टोटल खर्चा जोड़ना? देखना कितना हुआ यार। गलती तो नहीं किया मैं? गलती तो नहीं किया? 4700। कितना खर्चा? ज्वाइनिंग का पैसा नहीं काउंट किया मैं, हाँ ठीक हिसाब कर दिया मैं। ये खर्चा हो गया। पूरा महीना परेशान हुआ। सबसे ज्यादा काम मैं सेकेंड मंथ में किया। सबसे ज्यादा काम सेकेंड मंथ में किया। पूरा महीना बीवी बच्चे गाली दे रहे, मैं घर से भाग के काम करता रहा। 4700 रुपया का मेरा नुकसान, और मेरा सेकेंड मंथ का जो इनकम हुआ इसको मिला करके 750 रुपया। कितना? उसमें क्या था? पहले महीने का मिलाकर ये अलग कर लोगे तो प्रीवियस बैलेंस प्लस करके, ठीक है, प्रीवियस बैलेंस।
अब मैं घर में जब वो चेक लेके गया, मैंने बोला यार देखो देखो, मैं अपने वाइफ को बोला देखो आरसीएम से पैसा आया, देखो कितना गाली दी होगी, आप समझ सकते हो कितना। बोला मैं आपको समझदार समझता था, आप इतने बड़े बेवकूफ है, खुश हो रहे 700 रुपया पाके, यहाँ 4700 रुपये का आपने चूल्हा लगा दिया, बच्चे को छोड़ दिया, घर में सब्जी नहीं लाते हो, दूध नहीं लाते हो, सब मेरे को करना पड़ता है, मैं परेशान हूं। अब ये 700 रुपया मैं दे देती हूँ आपको। क्या बोला, क्या बोला, मैं दे देती हूँ, घर में बैठो टिक के। लेकिन मेरा टारगेट क्या था, थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा अब, है? अब यहां मैं जब टारगेट की बात करता हूं तो आपने अभी तक क्या सीखा, पहले जब मेरे स्टोरी से सीखा क्या। सबसे पहली बात, जिस दिन मेरे को समझ में आया उसके बाद मैं चैन से बैठा क्या, पहली बात मेरे को बोलो आप लोग, जब मेरे को समझ में आया तो चैन से बैठा क्या, समझ में आके सो जाएंगे तो पैसा कहाँ रहेगा, समझ, मेरा बात गलत है क्या, गलत है, गलत है तो ताली बजा दो, सही है। तो सबसे पहले आज अगर आपको समझ में आया तो कहते हैं क्या, इट इज नेवर लेट, क्या ऐसा कुछ ऐसा है कि जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तो आज ही समझो कि आज से सवेरा है। समझ में आया आप लोगों को आरसीएम बिजनेस? नहीं, अभी नहीं आया होगा, अभी तो आपको जलवा देखना बाकी है। तो मैं इमीडिएट एक्शन किया। एक्शन कैसे किया, अच्छा इमीडिएट एक्शन तो किया, इसमें मैंने क्या किया, आज किया कल नहीं किया, कल किया परसों नहीं किया, या 4 दिन किया तो 5वें दिन आज संडे है, ऐसा किया क्या? अरे मैं पूरा 10 दिन से आरसीएम के लिए दौड़ भाग किया, सर मैं बहुत थक गया हूं, ऐसा क्या किया? मेरा कोई सर था ही नहीं जिसको मेरे को बताना, ना मेरा कोई मैनेजर था, ना कोई मेरा क्या बोलते हैं सुपरवाइजर था, मैं ही मालिक था, मेरा ही टारगेट था, मेरा ही सपना था जो मेरे पूरा करना था, तो मैं किसको बोलता मैं थक गया हूं। और दूसरी सबसे अहम बात है, जिस चीज से आप प्यार करते हैं वो काम करने से कभी थकावट नहीं होती। अगर कोई बोलता है कि सर मैं बहुत भाग दौड़ किया थक गया हूं, समझो साला ये प्यार नहीं करता है, बेवकूफ बनाता है। इमीडिएट एक्शन और उसके बाद लगातार एक्शन, क्या लगातार एक्शन, है ना, करता रहा। करना क्या था इसमें जाके, उस समय तो और कोई प्रोडक्ट था नहीं कि ज्यादा प्रोडक्ट की बात करना, मार्केटिंग प्लान, पैसा कैसे आता है, पैसा कैसे आता है, कैसे आता है, उसमें जो चेक आया वो दिखा दिया अपना, उसका किसी और का, सबका दिखा दिखा करके लोगों को समझा समझा करके ज्वाइनिंग, मैं ज्वाइनिंग मास्टर बन गया। क्या ज्वाइनिंग सीखा कितने दिन में? पहले दिन वो पेपर फाड़ के फेंक दिया था मैं, 5 लोगों को देख देख के प्लान दे दिया, तो डीएन सिंह लिखा था, और उसके बाद फाड़ के फेंक दिया। उसके बाद वो याद हो गया मेरे को, अब बाकी बातें हम अपना चिपकाते रहते थे उस बीच बीच में, जरूरत के हिसाब से। कैसे? अब इस बातें तो हम बहुत सीख लिया मान लो। देखो इस बिजनेस में देखो लोग क्या करते हैं, एक कहावत अपने आप को भी यहाँ भी बोलते होंगे, ये गिरगिट के जैसा रंग बदलता है। क्या ऐसा सुना आप लोगों ने? गिरगिट जानते हो, चमेलियन बोलते हैं शायद, लिजर्ड का बड़ा भाई होता है। मैडम आप गिरगिट जानते हो? नहीं जानते हो गिरगिट? अच्छा उसका मैं आपको बताता हूं, तो लाल फूल के डाली पे बैठेगा तो लाल हो जाएगा, हरे पे बैठेगा तो हरा हो जाएगा। ओ गेको, गेको, अब आप केकू बोलो डेकू बोलो मेरे को नहीं पता, एक लिजर्ड जैसा होता है उसको चमेलियन बोलते हैं। हाँ तो वो तो हाँ एक जगह उसका मुंह लंबा होता है, मुंह क्रोकोडाइल जैसा होता है, उसका पूंछ लंबा होता है, समझ में आ गया? उसको बोलते हैं हम लोग गिरगिट, हिंदी में क्या बोलते हैं? गिरगिट, केकू, केकू। चलो तो केकू का क्या खासियत है? आप यहाँ लोग बोलते होंगे केकू जैसा रंग बदलता है, बोलते हैं क्या? बोलता है कैसे? हाँ हाँ बदली करे से, हमारे यहाँ भी कहते हैं गिरगिट जैसा रंग बदलता है। लेकिन गिरगिट से एक चीज सीखने की जरूरत जरूरी है कि वो जिस डाली पे बैठता है उसी का जैसा रंग कर लेता है। अब मुझे पता है ये हाउसवाइफ है, यहां मैं लंबा 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 बात में सीख के यहां से जाऊं और इधर फेंक रहा हूं, उनको समझ में आएगा क्या? कोई आदमी कम पढ़ा लिखा है, उसको बड़ी बड़ी बातें करा दो तो समझ में आएगा क्या? यानी कि
जो इस आदमी के पास जा रहे हैं उसी के हिसाब से बात करना है। आप अगर मान लो कोई आदमी का लेवल 19 है, 19 ये मापदंड रख लो किसी का, आप इसमें 20 की बात कर सकते हैं, इसके लेवल से एक नीचे 18 की बात कर सकते हैं। ये मेगा पिक्सल आप जो बोलो, क्या बोलो नहीं बोलो, इसका बात आप कर सकते हैं। इसके ऊपर जाएंगे तो उसके, और इससे नीचे करेंगे तो उसको बिलो लगेगा। क्या लगेगा? बिलो लगेगा। अरे यार ये तो काम की बात नहीं है। तो आपको इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए जो मैंने कहा, प्रेम के बाद बातचीत करने का तरीका सीखना पड़ेगा। बोला ना मैं बातचीत करें। आप जैसे हाउस वाइफ से बात करेंगे तो उनको तेल साबुन का, शैम्पू का बात करेंगे, लिपस्टिक का, अरे देखो वो लगा ली थी लिपस्टिक में, बोला क्या, उसका तो हस्बैंड बोला आज तो बहुत खूबसूरत लग रही है। आप भी यहाँ क्या बोलते हैं इसको, बहन को क्या बोलते हैं? बनी बोलते हैं। बहन आप भी लगा लो, आपके हस्बैंड ड्यूटी से आएंगे, आपको भी बोलेंगे क्या सुंदर लग रही है। अब ये बात आप इनको बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते ना। अरे मैंने बोला उसको, एक मेरी सहेली उसको बोला कि इसका आरसीएम का फेस वॉश लगाओ, इससे आपका जो काला काला है वो निकल जाएगा। अरे लगाई, खूबसूरत इतनी हो गई, मैं तो 15 दिन के बाद क्या, मैं ही नहीं पहचान पाई मैं सच्चा वो है या उसकी बहन है। ये आपको बात करना सीखना पड़ेगा। आपको अपने प्रोडक्ट की तारीफ के लिए देखना पड़ेगा कि आप किससे बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। अजी मैडम सही बोल रहे हो? सही बोल रहे हो? नहीं मैं पार्टी में गया था, वो शादी था वहां पे राजूदा के पड़ोस में, वहां पे वेज बाइट बनाया था यार, बाप रे बाप, हम तो सब कुछ छोड़ के केवल वेज बाइट खाया। सीखना पड़ेगा। गलत बोल रहा हो क्या? यही चीज सीखना और कुछ नहीं सीखना, यानी कि तारीफ करना सीखना है आपको अपने प्रोडक्ट का, अपने सिस्टम का। और क्या करना है बताओ इसमें? और कुछ थोड़े ना, डांस थोड़े सीखना है कि कमर को ऐसे हिलाओ ऐसे हिलाओ, ये सब नहीं है। चलो लगातार एक्शन, दो चीज आप लोगों ने सीखा। इसके पहले आपने यहां पे था मेरा क्या टारगेट, क्या क्या बिग टारगेट क्यों? 1 लाख कमाना है ना। हम छोटा टारगेट क्यों नहीं ले सकते? छोटा टारगेट क्यों नहीं ले सकते? ऑप्शन है ना, ये कहीं लिखा है आरसीएम में आपको बड़ा टारगेट लेना है। ये मैं बताता हूं अपना एक्सपीरियंस से, बिग टारगेट से छोटा टारगेट से क्या फर्क पड़ेगा ये बताता हूं मैं आपको। आपका ये लो, ये है लाइन एक, ठीक है। आप यहां पे हो, आपका पोटेंशियल बोलो, आपकी कैपेबिलिटी बोलो, आपकी एबिलिटी बोलो, आपका टैलेंट बोलो, जो भी बोलो, इतना है। कितना है? इतना है, ठीक है। आपने अपने बराबर का टारगेट ले लिया, 5,000 कमाएंगे। कितना कमाएंगे? ठीक है। सही तरीके से भी काम करोगे तो आपको समस्याएं, जितना बड़ा आपका टारगेट होगा ना उससे बड़ा आपका यहां पे समस्या होगा। छोटा टारगेट वाले को बड़ा समस्या ऑलवेज होता है। अब देखो यहां पे आने वाले को कितना समस्या हुआ, पानी रोका, गाड़ी नहीं मिला, किसी को तकलीफ हो गया। दिल्ली से आने वाले को कोई समस्या हुआ? हाँ? जब मैं धेमाजी स्टेशन पे उतरा तो लगभग 2 घंटे तक झमाझम बारिश हो रहा था और मैं मजे ले रहा था। क्यों? मेरा टारगेट भरा। तो ये टारगेट जो है, अब इस आदमी को क्या दिखाई देगा? थोड़ा देखना, क्या दिखाई देगा? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अरे आपसे मैं बहुत प्रॉब्लम, लोग सुनता नहीं है। अरे मेरा जितना सहेली था भाग गया, मेरे से बात नहीं करती है, वो मेरे को देखती है तो भाग जाती है, कहीं मैं ये ना बोल दूं तू भी हेल्थ गार्ड खा ले। होगा, मेरे साथ हुआ तो आपके साथ होगा। अच्छा यहाँ पे एक बात पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने साइकिल कितना लोग खरीदा? साइकिल 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 खरीदा? और कोई खरीदा? साइकिल खरीदा? कितने का खरीदा? 5,000? मान लो 5,000 का साइकिल आपने खरीदा। अच्छा मोटरसाइकिल कितना लोग खरीदा? मोटरसाइकिल कितने का खरीदा?
1.5 लाख 2 लाख हाँ? 2 लाख 1 लाख का। ये दोनों तो चलता ही है ना, दोनों का दो चक्री चलता ही है ना। अभी जब साइकिल मोटरसाइकिल आपने खरीदा 5,000 का, और मैं साइकिल खरीदा 5,000 का, और मैं RCM का कार रूबी, मैं अगर उस दुकान पे चला जाऊं, मेरे को कितने का देगा? 5,000 भी देगा। 5,000 में ही देगा। और मोटरसाइकिल लेने जाऊंगा तो कितना में देगा? 1 लाख जितना मांगो 1 लाख तो आपको 1 लाख में दिया तो मेरे को भी 1 लाख में देगा। इसका मतलब है RCM में जो प्रॉब्लम मेरे को हुआ वही प्रॉब्लम आपको हो रहा है। माने जितनी जो चीज आप खरीदना चाहते हो उसका कीमत जितना ये पे करेंगे, उतना वो पे करेंगे, उतना आप करोगे, उतना ही तो मैं करूंगा। जो चीज चाहिए उसकी कीमत, मैं अगर बोलूं कि मोटरसाइकिल में मैं तो बिलो पॉवर्टी लाइन हूं, आपने 1 लाख का बेचा, मेरे को 70,000 का दे दो, देगा? नहीं देगा। देगा? साइकिल 5,000 का बिकता है, मैं बोलूं 4,000 में देखो, देगा? नहीं देगा। बोलेगा जाओ भागो यहां से, बोलेगा ना। ये RCM में लोग क्यों करते? चाहिए उनको ज्यादा पैसा, काम मैं तो मेरे को टाइम नहीं मिलता बोलते, एक्सक्यूज बनाते। अब यहाँ पे देखो इस आदमी का समस्या का समाधान क्या है। ये आदमी अगर 50,000 कमाने का ले ले टारगेट, ये 5,000, ये क्या 50,000, उसको भी इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा। रास्ता इतना ही है, केवल इसमें तरीका ढंग से लगा दिया, जैसे मैंने कहा लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। ठीक है, तरीका ठीक करेगा तो इस आदमी को क्या दिखाई देगा? इस आदमी को क्या दिखाई देगा? RK झा की नजर में मैंने क्या कहा? टारगेट और क्या क्या बोला था? तरीका याद था और टाइम, 3 चीज याद था मेरे को हर वक्त। तरीके से काम करना है, टाइम पे काम करना है, और 1 लाख रुपया कमाना है। समझ में आ गया? अब मेरे लिए कोई समस्या था क्या? कहीं पे कोई समस्या था? तो इस तरह से मैं तरीके से काम करता रहा। मेरे पास 2,000 आया, 4,000 आया, 500 आया, 1,500 आया, मेरा रॉयल्टी का पिन बना, टेक्निकल का बना, ये बना, वो बना, क्या बना, नहीं बना, कुछ बना। 4 साल से पहले, कितना 4 ईयर से पहले मेरा 1 लाख क्रॉस कर गया। कितना 4 साल से बिफोर कर देता हूं, बिफोर 4 साल से पहले। समझ में आ रहा है आपको? क्या क्रॉस कर गया? मैं कोई एलियन तो था नहीं, मेरा अपलाइन बोला तरीके से काम करो, मैंने किया। ठीक है, मेरे को जब समझ में नहीं आया तो संजय गजभिये नाम का आदमी था, संजय गजभिये नाम सुना आप लोगों ने? संजय गजभिये, ये मेरा डाउनलाइन, ये 4 साल तक MBA किया हुआ व्यक्ति। MBA वाले जल्दी MBA छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन मैं उसे समझा करके RCM, क्योंकि मैं तो अपना स्किल इंप्रूव किया था, डेली मार्केटिंग प्लान दे दे के उसे लगा यार इसके साथ आऊंगा तो मेरा भी काम अच्छा होगा। वो आया, लेकिन उसके बाद जब मेरा बिजनेस 70,000 का हुआ था, कितने का? 70,000 का, जो मैं डायरेक्ट बिजनेस किया था 1 महीने में, ये 70,000 जो क्रॉस किया था मेरा, ये 4th मंथ था। इट वाज 4th मंथ। पहले महीने में 5,000, दूसरे में 20,000, 5, 20, तीसरे में 40, और चौथे में कितना किया था मैं? 70 क्रॉस कर दिया। इसमें मैंने हाईएस्ट ज्वाइनिंग उसी महीने की थी, दैट वाज 65 पीपल। कितना ज्वाइनिंग? इस 65 ज्वाइनिंग में से अभी 2 लोग चल रहे हैं, 2 लोग। ये 4th मंथ का, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, अब क्या हुआ? इतना ज्वाइनिंग करने के बाद मैं पैसे का बात इसलिए अभी यहां नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि 1 लाख से पहले मैंने पैसे के ऊपर कभी, मेरे को बस इतना ही याद है कि फर्स्ट मंथ 106 रुपए के स्टेटमेंट आया था, और 4 साल जाते जाते मैंने 1 लाख को, फिर क्या हुआ? मेरा तो टारगेट अचीव हो गया, मैंने सर्विस को रिजाइन कर दिया। क्या किया? इसमें मेरे को लगा 9 महीना। कितना? रिजाइन करने में, क्यों? सर्विस छोड़ ही नहीं रहा था मेरे को,
क्यों जा रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो? समझ रहे हैं आप मैडम? समझ में आ रहा है? और उस समय मैं फ्लाइंग ऑफिसर बना था। क्या बना था? क्योंकि यहीं पे तेजपुर में मैंने ब्रांच कमिश्नरिंग की एग्जाम दी थी, दिगारू एयरफोर्स में मेरा पेपर हुआ था। आपको मैं बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में मैं रिटन एग्जाम में नंबर 2 था। कितना? पूरे इंडिया में नंबर 2। किसी को आरसीएम अगर समझ में नहीं आता है उसको बता देना कि ऑफिसर के एग्जाम में पूरे इंडिया में नंबर 2 था, और नॉर्थ ईस्टर्न कमांड जो गुवाहाटी का रीजन है इसमें मैं नंबर 1 था। क्या था? वो आदमी आरसीएम बिजनेस करता है, वो आरसीएम बिजनेस करता है, वो आरसीएम करता नहीं, आरसीएम के लिए पागल है, पागल है। मैंने इससे पहले मैं जब 70,000 पे पहले एक बार आ जाता हूं, 70,000 की बिजनेस होने के बाद, 70 क्रॉस करने के बाद, मैंने वो ज्यादा था क्योंकि 65 लोगों को ज्वाइन करा दिया था, मेरा बिजनेस हो गया धराम। क्या हो गया? क्यों? अब मैं इससे ज्यादा अकेले नहीं कर रहा। क्या? मेरे बस का बात नहीं था। ठीक है मैडम, समझ में आया? फिर मैं अपने गुरु के पास गया, और आपको बता दूं जब सक्सेना जी के यहाँ मैं मीटिंग लेने के लिए संजय को जाता था, तो मैं अपने गुरु से टिप्स लेके जाता था। संजय गजबी जो मेरा डाउनलाइन, लोग तो अपने अपलाइन से शर्माते हैं टिप्स लेने से, अपलाइन से सीखने से शर्माते हैं, आरके झा से सीखने से शर्माते हैं, लेकिन मैं किसके पास गया? जो मेरा डाउनलाइन है, जो केवल 12th पास है, जो मेरे से कम पैसा कमाता है सर्विस में। बोला गुरु बिजनेस तो गया। बोला क्या हो गया सर? बोलता यार मैं कर करके थके यार, कोई सुनता नहीं, करता नहीं, आगे बढ़ता नहीं। बोला सर आप क्या करते हो? मैं बताया उसको। बोला सर आप ट्रेनिंग देना शुरू करो, अब आपको बातचीत करना आ गया, अब आपको मार्केटिंग प्लान देना आ गया, आप लोगों को सिखाओ। क्या करो? सिखाओ। उसी टाइम मुझे देखो, मेरे को आसाम के लोगों को मैं क्यों इतना प्यार करता हूँ, मुझे बहुत हेल्प किया आसाम में। काकोली सैकिया का एक स्कूल था छोटा सा, मैं काकोली के पास गया जिसका गुल्लक करवा दिया था मैं बोला काकोली अब तो बिजनेस नहीं चलेगा। बोला क्यों भैया, क्यों नहीं चलेगा? मैं बोला यार कोई करता ही नहीं है, मैं अकेले कितना भाग मर ही जाऊंगा, ऐसे तो आरसीएम करूंगा कि मरूंगा। तो बोला तो क्या चाहते? मैं बोला एक रूम दे दे मेरे को। बोला कैसे दे दूं, क्लास चलता है। मैं बोला संडे को दे दे। संडे को मीटिंग रखता था, मैं संडे को बाहर नहीं जाता था, संडे को मीटिंग रखता था, 1:30 बजे का टाइम रखा था। भाई आओ हम लोग सीखते हैं, आओ सीखें सिखाएं और पैसा कमाएं, यही मैं स्लोगन दिया था। लोग आसाम में कैसा बारिश होता है आपको पता है, लेकिन बारिश ऐसा ही हो तो भी 1:30 बजे से पहले आरके झा वहां पहुंचता था। कभी पता चला एक भी नहीं आया, कभी पता चला बारिश छूटने के वाला एक आदमी आया, उसके बाद में कभी 2 आया, कभी 5 आया, कभी 10 आया, लेकिन बाद में मैं देखा ऐसे लोग भरने लगे। और जब ऐसे लोग भरने लगे, मेरी टीम सीखने लगी, मेरे टीम में काम होने लगा, तो बिजनेस मेरा समझ में आ रहा है आपको? तभी आतिश रंजन जी उस मीटिंग में आते थे। के चौधरी को मैंने ज्वाइन कराया था क्योंकि चौधरी में जी मेरे यूनिट के थे, आतिश रंजन दूसरे यूनिट में थे। वो सक्सेना जी के पास में एक यूनिट था हमारा एयरफोर्स का, वहां पे उसको ज्वाइन कराया, और उस आतिश रंजन ने आपका अरूप ज्योति शर्मा को ज्वाइन करा दिया, क्योंकि वो लोग कंप्यूटर सीखने के लिए क्लास में जाते थे, वहां पे ज्वाइनिंग। अब जब सीखने लगे तो काम होने लगा, ठीक है, और काम होने लगा तो मैं पहुंच गया 1 लाख के इनकम पे धीरे धीरे। उसके बाद सर्विस से मैंने रिजाइन कर दिया। लेकिन आपको पता है जब आरसीएम बंद हुआ था, क्या हुआ था? 9 दिसंबर 2011 को बंद हुआ, और मेरा इनकम उस महीने में था 4,07,000। कितना? 4,07,000। आप लोग नहीं बोल सकते 4,07,000, बोलो। लाख रुपया कमाना चाहते हो तो 4 लाख बोलो, तो 4,07,000 बोलो। अब मेरा बात तो बुरा मत मानो, मैं क्यों बुलवा रहा हूं आपको? लाख बोलने की आदत होगी तब तो लाख आएगी रे भाई। लाख बोल तो सही, लाख तो बोलो। 4 लाख। हाँ अच्छा, मेरा टारगेट कितना था? 1 लाख। टारगेट था 1 लाख का। सिस्टम जो मैंने आपको सिखाया कि हिमालय पे चढ़ने के लिए हिमालय का पर्वत का होना जरूरी है, सिस्टम गया तो चला गया 4 लाख पे। लेकिन वहां से फिर जब कंपनी बंद हुआ तो अब यहाँ 0 के बाद इंटरवल है, इसके बाद मैं बात करता हूं आपसे। तो
आपने क्या देखा अभी तक? आप इस बिजनेस में पहले टारगेट लीजिए, टारगेट खुद के टैलेंट से थोड़ा ज्यादा लीजिए, खुद के टैलेंट से थोड़ा ज्यादा लीजिए। आपको लगता है कि मैं 10,000 तक का अपने आप को खींच सकती हूं, तो 15 का ले लो, सिन का छोड़ो चक्कर, पैसे का ले लो, ठीक है। और अगर लगता है कि मैं 20,000 कमा सकती हूँ, तो आप 40 का ले लो, ऐसा ले लो। क्योंकि आरसीएम बिजनेस में एक चीज मैं आपको बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग का थोड़ा सा मैं आपको केपीएमजी का रिपोर्ट बताता हूँ 2025 का। रिपोर्ट ये है कि दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग में 60% लेडीज कामयाब हो रहे हैं। कितना परसेंट? 60% लेडीज कामयाब हो रहे हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में तो आप घर से जाओगे तो आपका हस्बैंड बोलेगा अभी कहां जा रही है, अभी शाम हो गई क्या, आए क्यों नहीं, तू किसके साथ घूम रही है। एक मेरे को बहन बड़ा मिला, उसका हस्बैंड है बुढ़ा, बेचारी बंगाली से शादी कर लिया, असामी लड़की, बोलो है, बंगाली से शादी कर ली। उसका बुढ़ा बाहर नहीं जाने देता, क्यों, वो है बुढ़ा, उसको लगता है मेरी बीवी भाग जाएगी। मैं फोटो दिखाऊंगा उसका मैं अभी आपको। मैं उसको बोला तो उसको बोल दे कि आरसीएम बिजनेस हो, कोई किसी को लेके भागता नहीं है, ऐसा आज तक नहीं हुआ। टेंशन मत लो, बुढ़े को बोलो मीटिंग में आने के लिए, अगर इतना ही उसको चिंता है तो मीटिंग में बोलो आने के लिए। आप बोलो साथ जाने के, बोलता वो जाएगा नहीं, बोलता नहीं जाऊंगा मैं, तू भी नहीं जाएगी, बोलता दारू पी के बहुत गाली देता है। तो अपना हिंदुस्तान का कल्चर है ऐसे, उसी का साथ नहीं, वो थोड़ा ज्यादा करता है, बाकी जगह थोड़ा कम होता होगा, है ना, होता है अपने यहाँ। तो अपने यहाँ क्या है, इसका परसेंटेज है 54%। कितना? सक्सेस रेट ऑफ लेडीज इज 54%, ठीक है। और आगे की बात मैं आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान में जो पिछला रिपोर्ट है उसके हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हुआ 22,000 करोड़ का। कितने का? 22,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है, जिसमें एक्टिवली जिसके पास पैसा आता है, एक्टिवली पैसा का मतलब है जिसका टीडीएस कटता है सरकार के पास वही रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना, जिसका टैक्स करता है उसी का रिकॉर्ड होता है। ऐसे 85 लाख लोग हैं। कितने? 85 लाख लोग हैं जिनके घर में पैसा अच्छा से आता है और वो एक्टिवली काम करते हैं, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड है। आप ऐसी व्यवस्था में हो जहां पे एजुकेशन कोई मायने नहीं रखता, आप लड़की हो लड़का हो कोई मायने नहीं रखता, आप कितने पढ़े लिखे होता क्या है, आप अगर कितने भी अभागे हो, मैं बोलता हूँ, मैं तो अभागा बोल देता हूँ, अभागे हो मायने नहीं रखता। आप पूछो क्यों, पूछो क्यों, अब मैं बहुत बड़ा अभागा हूं, ठीक है, लेकिन ये तो टीम वर्क है ना। मेरे ऊपर कोई भाग्यशाली आदमी है और मेरे नीचे कोई भाग्यशाली आ गया कभी, दोनों का एवरेज निकालो तो मेरा कितना होगा, है? तो इसमें कुछ भी नहीं है, इस बिजनेस में कोई अभागा नहीं है, फर्क इतना है कि वो अभी जागा नहीं है, ठीक है। हाँ? सिस्टम में जो लोग हैं सब तो जो थोड़ा सा